thought process and how to in particular way, and that is excellent in it. So that way, I hope today's session will be like very helpful for all of you. Like so, I welcome Kalan sir. Sitting. Thank you. Yeah, start talking. So, good morning, and my apologies for being late. 10 minutes, 10 15 minutes rather. That's one way to show importance. That's what I'm late out, but that was not the reason. There was some gap. Difficulty. So, okay. We'll keep it as interactive as possible, and I don't want to waste much of your time also because English is fine. Yes. Everyone? Yes should come. Yes. Yes. Anybody know? Anybody who's not comfortable is nothing in the English. जिनको मतलब English नहीं हिंदी में बात करना है तो हाँ like yes हाँ तुम बोल दीजिए. Everybody is comfortable in English, right? Okay. So, okay, how many of you have given prelims before? One. Raise hand. If you raise hand full, not half. Half-hearted attempt जो दिए वैसे करते होंगे ना. So raise hand. How many? Six. And what happened? You need this. Online students. Okay. So, yeah, feel free. What happened? GS or CSAT? GS, you don't know. You don't know actually. Huh? So CSAT is the. CSAT was an issue, sir. CSAT. I think there are a few more who gave, huh? GS. Okay, CSAT is clear. GS. What was the mark? What is your assessment like? 92. Yes, I gave it before 2 years. Oh, okay. Not last year. Aapka? 75. This year, 23. Okay. So, see, for me, I may not be the right person to discuss preliminary strategy and mains because I gave my exam 10 years back. Okay. And fortunately or unfortunately, preliminary was not a concern, but it got cleared. Both the first time I was working and to talk a little bit, I don't know how many of you know me. So I am Kannan. So you all know? Yes. Okay, so we'll leave that. So preliminary, of course, was given while I was working, and I cleared the preliminary. Then in the mains, I couldn't, and that's when I resigned and gave a full attempt. Like 2011 exam. It's long back now. But then also preliminary was not an issue. The concern was actually mostly mains. But both the times CSAT was there. That around similar kind of a syllabus was there, and CSAT later became a cutoff kind of a thing, right? Okay, we'll discuss how are you preparing. So you're all giving for the first time, except for the 6 people who have given. All of you are giving for the first time, right? And different backgrounds, but engineer, humanities, agriculture, humanities. How many engineers? Only one. And it's very rare. Otherwise, everywhere you'll find a lot of engineers. Okay. Others are all arts background. Any science? Okay, there are a few science. Okay. What do you think what happened in the CSAT? Time management. Only few questions you attempted. Okay. But how did the GS go? ठीक था. So you think CSAT was the main reason? So what are you doing now for CSAT? Practicing. तो कहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में है, प्रोबेबिलिटी, डेटा न्यूमरेसी में है, किस में?
टाइम लग क्वांट में, तो फिर पहले उसको क्यों अटेम्प्ट किया फिर? कुछ था ही नहीं, और वो उसमें वो जो मतलब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो काफी 20-30 का तो उसमें ही आ जाता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। तेरी प्रॉब्लम था अंडरस्टैंड। सो उधर भी ओके। सो फर्स्ट टाइम वो लॉजिकल इंटरप्रेट करो या फिर जो स्टेटमेंट रहता है ना हाँ, उसमें problem। okay, we'll not go directly into exact topics today, just more of an interactive session and what to do with respect to your time management. Okay, so I'll just share how I used to study, okay, in terms of preliminary. There are multiple different topics, be it GS or CSAT, and again, the difficulty with me is that जो engineering background से आते हैं, CSAT kind of becomes a slightly easier because वो जो इसका background आपका रहता है और generally reading and comprehension, data numeracy, probability, and all those things become slightly easier when it comes to your coming from engineering background. Okay, it's slightly different when it comes to humanities background. The same thing kind of compensates in the GS part. Okay, जनरल स्टडीज के पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो या ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, जो इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जिन्होंने उसमें जो डिग्री लिया है उनके लिए वो आसान रहता है, whereas इंजीनियर कैंडिडेट्स के लिए उसको पढ़ना पड़ता है पूरा, तो काइंड ऑफ इट बैलेंसेस आउट वन वे और द अदर। पर क्योंकि सीसैट एक कट ऑफ है, सीसैट अगर क्लियर नहीं करोगे तो आपको और कहीं पे बाकी वो नहीं करेगा, तो इट्स स्लाइटली एडवांटेजेस आई वुड से जो एप्टीट्यूड टेस्ट आया है फॉर द नॉन साइंस और द प्रोफेशनल डिग्री जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रहता है। तो जो प्रिलिमिनरी का जो सब्जेक्ट्स है जीएस का, वो ऑफ कोर्स यू ऑल नो राइट, क्या क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हाँ ज्योग्राफी, Environment. एनवायरनमेंट, हाँ करंट अफेयर, इंटरनेशनल। हाँ ओके। So how do you divide studying this time? Like you're all अभी सोच रहे देने के लिए कि या कुछ पढ़ाई शुरू किया है या पढ़ाई शुरू किया है ना सबने? अच्छा, किसी ने तो अभी बस सोच रहा है कि प्रीलिम्स देना है कि नहीं है। आई थिंक दैट यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट गिविंग प्रीलिम्स राइट नाउ, नो द गर्ल बिहाइंड यू। आप हाँ अटेम्प्ट 26 में अभी प्रीलिम में नहीं वही मैं देख रहा था कि ओके, सभी को 24 में ही देना है ना, है ना, 24 में क्लियर भी करना है ना, 24 क्लियर करना है। सो डोंट गिव एनी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। वो नहीं है कि मुझे देना है बाद में ऐसे ही एक बार दे देती हूँ, मतलब दे देता हूँ और फिर देखेंगे। आई वुडंट सजेस्ट दैट, आई डोंट नो मेनी पीपल वुड एग्री दैट कि वो करके देख लो एक बार, क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत है, यू कैन गेट अ फील ऑफ इट। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। आप अगर दे रहे हो, टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो, पेरेंट्स का या खुद का पैसा बर्बाद कर रहे हो, अगर इफ ओनली दैट, देन गिव इट अ फुल अटेम्प्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? फुल टाइम स्टडीज ओनली, राइट? 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई है कि नहीं? हाँ, तो हाउ डू यू स्टडी? व्हेन डू यू स्टार्ट? In the morning. Start with the newspaper reading. Okay, you tell, yeah, sure. So early morning, close to 9 o'clock, 10 o'clock, sir. You start studying. Yes. Okay. And carry on with newspapers, probably. Most time we do that one. Then take 1 or 2 topics, which could be left over. Or start with some topic, maybe history, probably, because it's my optional also. So I mean, start with. Are you clear about the last time? No, sir. Okay. So try with that topics maybe because you get fresh early to study, so don't take that difficult topic, so you don't get stuck up in the first hour only, and or take any topics and then start on maybe 1 or 2 topics daily, sir. And then make writing few things about it, making notes, making anything regarding. Okay. So difference में रात को कब तक पढ़ते हो? Not too much, maybe 9 to 10, sir, then I'll go to sleep. Okay. So मेरा एक डिफरेंस ये बताता हूँ कि जैसे आपका नाम क्या है? अजय। तो अजय जब शुरू करते हैं पढ़ाई तब तक मैं 4 घंटे पढ़ चुका होता हूँ। Yes, sir. Understand? Yes. क्योंकि I used to get up early. So I'll just share my way of study and the reasons for it. Okay. और मुझे क्लियर था कि एक ही अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में निकलना है। मैं नौकरी करता था, शादी भी हो चुका था, और उसके बाद नौकरी, शादी होने के बाद नौकरी छोड़ के 1 साल इसके लिए तैयारी करना था। तो ये क्लियर था कि इस साल निकलना है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार इसको दूंगा, आगे कभी ये नहीं है तो फिर पीओ दूंगा या फिर कुछ और दूंगा, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं सजेस्ट करूंगा ऐसे
10 चीजें सोच के भी करना चाहिए, इसको गिव इट 100% अटेम्प्ट. Okay, if not, you can give one more attempt. I'm not saying that don't give any other second attempt or third attempt, but give a 100% attempt every time. हर बार जब भी देते हो तो इसी साल निकलना है, यही सोच के देना है, इसी साल, ठीक है. अब उसमें जनरली मेरा एक शेड्यूल रहता था. वी कैन डिस्कस हाउ द शेड्यूल कुड बी. अभी 4 महीने हैं आपके पास और 4 महीने में आपका सबका प्री क्लियर हो सकता है. दैट्स माय बिलीफ. ओके, 4 महीने में प्री क्लियर हो सकता है क्योंकि 7 टॉपिक है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेरे ख्याल से क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईआर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, है ना. करंट अफेयर्स तो डेली चलता रहेगा एंड इसके साथ सीसैट चलता रहेगा. ठीक है, इतना ही है. इससे ज्यादा तो 7 टॉपिक है, इससे ज्यादा है नहीं. थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी तो सबको तो इस सारे टॉपिक्स में आगे होगी. राइट, आई एम स्विचिंग टू हिंदी, जो चलेगा ना वो केसा. तो इतना तो टॉपिक है, फेमिलियरिटी तो सबको होगा. राइट, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक maybe get up at 5:30, maybe 5, doesn't matter, 5, 6, जो भी होता है, and then start with whatever my, जैसे मान लो एक हिस्ट्री का वीक है, ठीक है, I have taken history to be finished in the next 10 days, okay, and finish in the sense not just read. First day जो है मैं क्या करता था, I'll take the previous year questions, okay, just take the previous year questions before, and then you look at what are the sources that you need to, कि क्या है हिस्ट्री के लिए, क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए, अपना हिसाब से बता दीजिए. ऑफ कोर्स एनसीईआरटी तो रखना ही रखना है. हाँ, स्पेक्ट्रम किसका है? हाँ, मॉडर्न इंडिया. हाँ, और उसका हम लोग वो बिपिन चंद्र पढ़ते थे. यू रीड नाउ? नो, राजीव अहिर. So this book, Shekhar शेखर बंदोपाध्याय. ओके. Sir, I have a doubt. Sir, whether NCERT are relevant for today's prelims, because very less questions have been asked from NCERT. Okay, so NCERT, what it gives is it gives a basic idea about everything. You don't need to go into the depth of reading. Like when we used to study NCERT in a very detailed way, and questions do come from NCERT. It's just it is not very evident in the first reading of NCERT books. When you go to the when you take question papers and then try to see whether there are answers or hints given in NCERT, more often than not, you will find that some of the other answers are given, or some hints are given, or some part of the questions are given from the NCERT. Especially, अब इसे questions कैसे आता है कि एक सवाल आता है, उसके बाद 3-4 statement देते हैं maximum, है ना? And then it is not about whether you know about the topic. It's like how well you know about the topic and in and around the topic. So मान लीजिए ICC है, ठीक है, question about अभी South Africa took Israel to ICC. So there could be a question on International Criminal Court, right? International Criminal Court के question कभी ऐसे नहीं आएगा कि what is International Criminal Court या फिर it is established where or something, ऐसा नहीं आएगा. 3-4 statements आएंगे कि ICC was established with the Rome Statute, it is under UN Security Council, ऐसे 3-4 चीजें आएंगे और उसके बाद पूछेंगे कि ये only A is correct or B is correct or only 2 are correct or 3 are correct, kind of thing, right? So it's very difficult to know all of these things, right? But what we can know, we can also eliminate. We know some of them are correct, some of them may not be correct, and generally in prelims it is once you eliminate 1 or 2 options, then it becomes a 50-50, then you go for it, right? Once you're kind of clear for a 50-50, then you go for it. It's very difficult because there could be one statement which you're not sure about, and then you will not be able to know also कि वो actually सही है कि नहीं. NCERT उस मामले में क्या करता है, जैसे कोई सवाल था कि मुचरी के बारे में, ignore what it is, don't worry, ठीक है. अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो नॉलेज के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सोचने की जरूरत नहीं है. पढ़ने के बाद उसके सोचना चाहिए. अब there are questions about 3 places and what are the importance of these places. Now एक सवाल था, on one place it mentioned these are port cities, okay. Now somewhere it is actually mentioned in this thing history book that Muchiri is a port city. See, if you know that was enough, other things are not there in that. बाकी जो 3-4 cities का नाम है उसमें थे नहीं, but that was enough to give you an answer here, 100% answer. क्योंकि it was all this a port city because one of them a port city, other could not be, right? So that in that way I would still suggest you should go for NCERT. You should go through it, no need to study in a हर एक पेज उसका समझ में आना चाहिए. But even before that, how I used to do, I can share whether it makes relevance or not. आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. I used to take, जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मान लो हिस्ट्री शुरू करना है आज से, मान लो 10 दिन, ठीक है. So how many days you have?
I think 120 days अभी, right? 120 days. 20 दिन छोड़ दीजिए, so 100 days तो है. तो 100 days में अगर 15 दिन भी करके चलो तो you have time, right? You have 15 days for each topic, you have time to cover, right? 90 days तो हो गया, मतलब 7 topics है, मतलब 90 plus 10 आप कर लीजिए, तो you'll have 15 days for each topic, right? Now 15 days में, to begin with, generally you take all the क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रिलिमिनरी let's say, and वो तो अभी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज आपको सब जगह मिल जाएगा, नेट में फ्री में मिल जाएगा, राइट? ये सब पता है ना कहाँ से मिलता है, अदरवाइज किसी जो भी गाइडेंस देते हैं उनसे पूछ लीजिए, they will provide you for that. तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है एंड जो कुछ सजेस्टेड बुक्स है ना, चाहे वो विपिन चंद्रा हो सकता है, राजीव वगैरह का हो सकता है, या एनसीईआरटी हो सकता है, जो भी हो सकता है, आई यूज्ड टू जस्ट टेक सम पार्ट ऑफ इट. मान लीजिए ये एरिया है मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उस टाइम का, या फिर कांग्रेस मूवमेंट उसका है मान लो, तो उसमें से कुछ सवाल वैसे आते नहीं है, बट स्टिल लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एंड देन यूज्ड टू टेक दैट चैप्टर and see whether NCERT has provided me that answer somewhere that or not, just to give maybe 5-10 minutes to take it. या विपिन चंद्रा में उस बार उसके जवाब आए कि नहीं, अगर उसका कुछ भी नहीं है, वो 3-4 एरिया का जो है वो किताब में आ ही नहीं रहे कुछ भी, then like he said NCERT may not be the right way to go for that chapter. ठीक है, you can't say that NCERT पूरा का पूरा जरूरत है, NCERT पूरे का पूरा जरूरत नहीं है, ऐसे भी नहीं बोल सकते. कुछ चैप्टर्स जो है वो रेलेवेंट हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स नहीं रेलेवेंट होते हैं, तो you can take a look. And then you can decide, okay, once you have finalized on the sources, एक बार आपने source finalize कर दिया कि मेरे लिए हिस्ट्री जो है ये 3 चीजें हैं, ये 3 बुक्स है जिसमें मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है. Then you don't go for source hunting. फिर उसके बाद 10 किताब और मतलब, क्योंकि वो तो आते रहेंगे, मतलब there is no dearth of sources, और ऐसे हमेशा होगा कि 4-5 सवाल तो है इससे बाहर का होगा, है ना. ऐसे कोई भी किताब नहीं है जो पूरे यूपीएससी के सवाल आपको बना के दे देंगे, जवाब दे देंगे, ऐसे है नहीं. तो हमेशा बाहर के उसमें होंगे. एक बार आपने ये कर लिया, पर ये पहले करना जरूरी है, ठीक है. जैसे आज मान लीजिए हिस्ट्री शुरू करना है कल से, तो आज सेकंड हाफ में जाके थोड़ा वो टॉपिक लेके 2-3 एक किताब लेके एक बार आ रही कि नहीं, इसमें से आ रही कि नहीं, वो भी एक्चुअली नेट में मिल जाता है ऑलरेडी कि इस किताब में यहाँ पे दिया हुआ है, इस किताब में यहाँ पे दिया हुआ है. यू विल गेट एन आइडिया, ओके दीज आर द 3-4 सोर्सेस जिसकी पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मुझे सोर्सेस फाइनलाइज करना है. एक बार फाइनलाइज कर लिया, देन यू स्टार्ट, देन यू कीप योर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो वो जो क्वेश्चंस रखते थे और आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है. एंड मेरा सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं पढ़ते हुए नोट नहीं बनाता था, ठीक है. फॉर मी दैट वाज वेरी लाइक बहुत टाइम लेता था नोट खुद से बनाना. ऑप्शंस डिफरेंट है, ठीक है. ऑप्शंस आप अभी भी देखोगे, सोशियोलॉजी नोट्स कर्नल अभी भी मतलब वन ऑफ द लाइक सबसे लार्जेस्ट डाउनलोडेड नोट्स है, वो 10 साल पुराना है, ठीक है. तो स्क्रिप्ट में अभी वो पैसा लेके दे रहे हैं, मुझे खुद डाउनलोड करना पड़ रहा है उसको पैसा देके. तो that was actually options is different because you need to create notes analyzing various topics, and prelims is different. Prelims you're not trying to write a comprehensive answer, right? You are looking at your knowledge, your analysis, and your process of elimination of wrong answers, and then doing a guesswork, right? Not just knowing the topic is enough. Your analysis of the topic is important. How do you connect one to the other? है ना. जैसे इसराइल की मैटर आया, वहां से आईसीसी का क्या हो सकता है, आईसीसी रिलेटेड क्या यूएनएचआरसी हो सकता है, ठीक है. तो आईसीसी भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो क्रिमिनल कोर्ट है, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है, तो इसमें डिफरेंस क्या आ सकता है, इसके 2 स्टेटमेंट हो सकता है. देन इट बिकम्स, सो you are comparing 2-3 things in a way, and then trying to analyze, and then you eliminate certain things that you don't know about, right? And then you come to an answer. तो जैसे आप शुरू करेंगे उसमें you begin with it, and then 15 days you have given, let's say. Generally very difficult to, at least I was not able to finish any of it 100%. 15 दिन मान लो मैं देता था. It was similar like that. I resigned about April and we had exam October, August, September, I think we had that. तो 4 महीने का ही टाइम था, उससे ज्यादा था नहीं. तो पर वो 15 दिन में जो टॉपिक आपने डिवाइड किया है, ये डिवाइड करेंगे 15 दिन में करूंगा. तो ये मॉर्निंग 5 o'clock और 6 o'clock you start. 2 hours you get very fresh, you finish a chapter, you just go through the previous year questions, trying to analyze कि वो उससे आपको जवाब दे पा रहे कि नहीं आ पा रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे. अगर मान लो आपका जवाब नहीं दे पा रहे, then you need to just go through it again and see whether, है ना, उसमें से कर सकते हैं कि नहीं. Majority of the times you will be able to get some idea of the answer. उसके बाद let's say that is history. I was not generally taking only one topic at a time. कि 15 दिन सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसे मैं नहीं करता था, because मेरे लिए वो बहुत बोरिंग हो जाता था.
कि एक ही टॉपिक जो है सुबह से शाम तक रात तक जो है आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो या एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आई शुड टेक एटलीस्ट 2 or 3 and I used to divide it. जैसे मॉर्निंग का ये है, देन मान लो न्यूज़पेपर, सो बाय द टाइम 8 o'clock you'll have breakfast, you'll have tea, whatever, you take your break. उसके बाद आपका न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर you will take 1 to 2 hours to read. ठीक है, आप 1 से 2 घंटा आप पढ़ सकते हैं. अब उस टाइम जो है lot of people used to make notes again. न्यूज़पेपर का आप लोग नोट बनाते हैं कैसे? अंडरलाइन करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आप तो डिफरेंट, सबका आपका अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है. So I used to just cut it and keep it or something like that. ऐसे काट कूट के किताब रख देता था. और which was very useful for me at the time of giving the exam. तो उस टाइम क्या है, you are able to just go through all of them. But अभी almost all the academies are bringing up with their, है ना, पूरा analysis, current affair analysis notes, है ना. चाहे वो शंकर का आता, फोरम का आता, बहुत सारे आते हैं. I think a lot of people have started coming up with current affairs. तो ये एफर्ट में आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, some part of it. अगर कुछ, but do go through the newspapers, okay? And newspapers essentially what I feel is, पहले बार जब पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है. जब न्यूज़ रीडिंग शुरू करते हैं, कितना लोग डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? हाथ ऊपर जब भी दे रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हाथ ऊपर, ऊपर, एकदम ऊपर. तो इस साल यूपीएससी देना है? नहीं देना है. इस साल यूपीएससी देना है? 5, सब 25 है. तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ रहे? न्यूज़पेपर से क्या प्रॉब्लम है? Used to read. Listen, videos. Listen. Explanations of this analysis. No, that is not the same as reading newspaper. It's a very huge difference. Huge difference. पीछे आपका, हाँ, 25. But you are starting your preparation, right? You are starting your preparation. तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ते? What is the reason? Why? What is the difficulty in reading newspaper? न्यूज़पेपर तो डेली आता ना, हैं? Anyway, so 25 also, see, that is why I asked how many of you are giving this year, because 25 people might feel they have enough time to आराम से कर सकते हैं. I don't agree there also, because let's focus on 24, okay? 25 के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं. तो जो 24 है, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जितना लोग 24 में दे रहे हैं, already started reading, है ना? You started reading, right? So one thing you will observe is that you know all the basics, right? कि कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना है, कौन सा वो सब. I think by now anybody serious will know what to look at and what not to look at. Then what you need to do is, today, like tomorrow's news, you will be able to know what is tomorrow's news if you are actually a good newspaper reader. Because you know, जैसे economic survey कौन सा तारीख को आने वाला है, तो you know that what is going to be. Budget क्या आने वाला है, you know what it is going to be. आपने economic survey पढ़ लिया तो बहुत सारे बजट के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वो क्या होने वाला है. So if you are reading newspapers, you need to be very clear that news is nothing new. News is always incremental, है ना? So you need to connect what happened yesterday to today to day after. वो अगर वो connection बहुत ज़्यादा जरूरी है. Lot of them, especially in current affairs, the news is generally a statement or a, what you call, something which can catch your attention, है ना? सवाल मान लो कि 5 trillion economy, right? Now 5 trillion economy is a news, you know, that we aim to be a 5 trillion economy, but that will never be a question, you know. Question will never be like that. Could be a question is that what is the share of manufacturing that we plan when we are going for a 5 trillion economy, right? And then if you start looking at it, then you will say, okay, what are the different sectors, right? Primary, tertiary, or secondary, or industrial, agricultural, you know, that way you will start looking at it. And then you see, okay, for 5 trillion, what is the kind of project growth projection that each of them are seeing? What are the kind of bottlenecks that each of them are seeing? ये आपको इसका जो analysis part है, ये आपको धीरे-धीरे आता जाएगा. It will start coming in a big way. So news heading might be something which is a political statement or a dream or a wish or any of that, but beyond which there will be a lot of analysis on each of these topics. उसको समझना जरूरी है और उसको लिंक करना भी जरूरी है from whatever you read in other books. But मान लो इकोनॉमिक की किताब में आप पढ़ रहे हो, उसको आप देखना पड़ेगा. Similarly in international affairs, अभी जैसे like what is the kind of share, like as I analyzed history का around 15% generally आता है questions, more or less 15, है ना? Geography similarly 15%,
I think quality 15%. I think quality is something is pretty much very easily should be doable. Then economics 15%. Then you have your international relations, maybe 10% maximum. I'm not taking current affairs separately. Okay, dynamic topics are also included in this. Current affairs separately लोगे तो 20% वहाँ चला जाएगा, तो उसको इसी में include किया हुआ है. Then आपका environment and ecology, which is around 15-20% again it comes, right? And science and technology maybe 10%, and some other topics, miscellaneous topics 5%, right? अब pattern तो सबको पता है. You already all know the pattern. There are 100 questions general studies, and there are 80 questions CSATs. 100 questions, 200 marks, right? 2 marks per question. Negative marking 1/3, right? Clear है ना? Yes. Yeah. Okay. Similarly for CSAT, what is it? 2.5 and 80 questions. 80 questions and negative. 4. So this is more or less. And what is the cutoff in GS for general? Yeah. 90. Assume 90. And CSAT 100. Take it. 67. 67. This is 67 this time. That's pretty low. Okay. Qualifying. Sorry. Qualifying is 67, right? So yeah, 33%, right? So 67. So the moment you look at it, then you realize कि questions अभी जब भी question previous year question लेके हमें डर लगता है, जैसे एक चैप्टर शुरू करते हैं मान लो हिस्ट्री और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेते हैं, तो हमें लगता है इसमें से कुछ भी नहीं आता हमें. अगर थोड़ा बहुत हमने पढ़ना शुरू किया है तो हमें लगता है कि तो ये सारे सवाल जो है हमें आइडिया नहीं है. ठीक है, कोई भी वो इसलिए पहली बात तो हमने ठीक से पढ़ना शुरू नहीं किया, एक बात ये. और दूसरी बात जो है यूपीएससी खुद भी नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सारे क्वेश्चन आपको आए. What is 90 out of 200? It is 45%, right? 45% क्या है? पास मार्क. अगर मान लो आप एक एग्जाम दे रहे हैं एक यूनिवर्सिटी का, तो 40% तो आ ही जाते हैं, 50% तो आ ही जाते हैं आपका, है ना? This is all that they are looking at. Of course, the level of the questions are slightly high, but they are not looking you to know 100% of all the answers. They are looking only that you are good enough person to get a 50 of the questions, right? 50 questions is not that difficult to do, right? Why? Because there are certain topics which you are comfortable with. मान लो आप history student है, आपका history option है, then history becomes easy for you, right? So history there, at least if there are 15% comes, so how much? 30 marks comes there. Out of, let's say you get 20 out of that, suddenly you've taken 20 out of that, right? Rest only 70 that you have to come from the next 170, right? Similarly, for some people, quality is generally easy because there is very limited thing that you have to read, and then you can follow up with on the whatever is the current affairs, PRS या फिर जो भी आता है योजना कुरुक्षेत्र जो भी आता है वो सब देख के आपका जो है वो immediately आ जाता है. So why I'm saying so is जब आप शुरू करते हैं, when you are starting to prepare, I used to be very worried कि previous year questions देखता था और मुझे लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं है इसमें. I don't know anything about it. And then that in that search कि मुझे ये सारा आना है, I used to spend initially a lot of time in searching both sides, like lot of things. बहुत सारी जगह पे सर्च करते थे कि इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है. ठीक है, वो सवाल के जवाब जब कोई देता है तो बहुत सिंपल लगता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है. ठीक है, पर एग्जिस्टिंग नॉलेज से सवाल के जवाब तक जाना जो है वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस. आपको जो बेसिक नॉलेज है इसमें अगर थोड़ा सा मैं anyway, it doesn't matter, we'll go into theory, but maybe later. तो existing knowledge से तो वो देखते हैं ना तो हमें थोड़ा सा intimidating लगता है UPSC. More often than not, we feel like UPSC preparation is a little intimidating. The questions are a little intimidating. But that is because we think we need to know all the answers. We don't need to know all the answers. And preliminary is anyway just only a cutoff, right? You need to be sure that you get that 50% in both CSAT as well as GS, right? That too you have to get the 100 you clear, then you 100% you're going to clear. Now for that you can, depending on the topic, there are certain static topics, there are certain current affairs topics. Anybody, even if you go just if you simply read newspapers every day and go also, I think you'll get 10 marks easy. सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के जाओ और कुछ ना करो तो भी 10 मार्क तो आएगा. ठीक है, अब और कुछ तो वहां से तो शुरू हो ही गया. Now let us start, come back to why I said I'll divide it into 3, because for me कई लोग different तरीके से prepare करते हैं.
एंड यू हैव टू बी क्लियर, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरा तरीका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वैसे ही करना, ठीक है। I'll never say that. Each one of us will have our own strategy, our own way of doing things. पर मेरा क्या रहता था कि मान लो 2 घंटे आपने हिस्ट्री कर लिया, तो उसके बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखता था। पहले आपने डिसाइड कर लिया सोर्सेस, उसके बाद उस चैप्टर का मैं एक बार जब पढ़ लेता था तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता था कि क्या मैं उसको आइडिया भी, मतलब am I able to answer, am I able to not maybe 100% answer, but am I able to eliminate at least 2 of those options, right? 4 ऑप्शंस होता है, उसमें से 2 तो मैं क्या एलिमिनेट कर पाता हूँ क्या, which is fair enough. अगर 2 ऑप्शन कर पाता है तो fair enough, I'll just move on. Then you'll start with your newspaper, ठीक है। So you need a change. It's very difficult to study one thing for a long time. And then when you go with the newspaper, I used to read, I used to underline generally, but underline जो है मेरा आदत है, it's not a strategy or anything. कुछ भी बुक किताब पढ़ो तो उसको अंडरलाइन करते रहना, उससे मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा दिमाग के अंदर बैठ जाता है। उसके बाद मैं इसको कट करके रखता था, और किताब के अंदर मान लो मुझे लगता है हिस्ट्री है, ये दिस न्यूज़पेपर कटिंग इज अबाउट हिस्ट्री, सो आई जस्ट कट इट एंड पुट इट, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक क्या बोलते हैं, थोड़ा कामिंग वो भी था, मतलब क्योंकि आप एकदम पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी यू आर लाइक एक्सट्रीमली ट्राइंग टू, यू आर नॉट एंजॉयिंग द रीडिंग, आप उसको, है ना, आप अदरवाइज अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो एकदम फ्री होके न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, है ना, पर उस टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कुछ मिस ना हो जाए, है ना, कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें से कुछ मेरा, है ना, वो हो जाए, तो यू आर स्टिल हाई प्रेशर, यू आर हाई टेंशन आप जो पढ़ते हो, तो वो कट करके रखने का मेरा ये होता था कि थोड़ा रिलैक्स्ड, है ना, वो जो बबल पॉपिंग करते हैं ना लोग, थोड़ा उस तरीके का करता था कि कट करके हिस्ट्री का एक, मान लो एक पुराना कोई नोटबुक था उसमें रखता था, उसकी जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग माय द वे आई यूज्ड टू डू थिंग्स, एंड हिस्ट्री इकोनॉमी ऐसे ऐसे करके अलग अलग उसको चैप्टर में रखता था, और उसके बाद मान लो देन आई यूज्ड टू टेक द सेकंड, you can go either, you can go back to history only, let's say if history is your topic, then what 8 9 10 10:30 तक आप न्यूज़पेपर का हो जाएगा, 1.5 घंटा या फिर 11 बजे तक, ठीक है, और ये जो है ना फुल टाइम प्रिपरेशन है, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो तो अलग बात है, तब भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बट दिस इज फॉर क्लियरिंग, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इस साल क्लियर करना ही करना है, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद 8:39 9 to 10 10:30 न्यूज़पेपर का कर लिया, मे बी अनदर 15 मिनट्स ब्रेक, 11 बजे जो है सेकंड आपका हिस्ट्री, मान लो हिस्ट्री आपने उठा लिया, लंच तक आपका हो गया, ठीक है, सो यू आर एसेंशियली बाय द टाइम यू आर हैविंग योर लंच 1 o'clock or something, you already done 6 hours of study, right? So 6 to 8, I used to get up at 5, but you can saying 6, but if you want to do so 6 to 8, then you already done another 2 hours न्यूज़पेपर को स्टडी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत पढ़ लिया करके ना, तो न्यूज़पेपर उसको थोड़ा रिलैक्स ही मान लेने से कि न्यूज़पेपर देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने 2 घंटे आपका हिस्ट्री कर लिया, तो बाय द टाइम ऑफ लंच एवरीथिंग इज देन डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आपको ब्रेक लेना है, ठीक है, एंड दिस इज on the best possible day I'm saying. I generally never used to do like this, but you have only 4 months, है ना, और डिफरेंस ये था कि मेरा प्री दोनों बार, प्री के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा था, मोस्टली फॉर मेंस। उसके बाद जो है लंच कर लिया, थोड़ा जो भी टेक रेस्ट अराउंड, यू स्लीप और व्हाटएवर you do, and then your time starts again, right, maybe 3 o'clock, ठीक है, then again you have time 2 hours, so for me 2 hours as a block, 2 घंटे लोग 1 घंटे का भी करते हैं, तो वैसे 2 घंटे भी 1 घंटे के टाइप में हो जाता है कि 1 घंटे के बाद एक बार आप निकल के बाहर थोड़ा चल के वापस आते हो, वो सब करते ही है, बट 2 hours of my block for finishing each of those things. So essentially you got 3 blocks in the morning, 1 block before newspaper, then you come 3 to 5 another block before, right, and 5 to 6 मान लीजिए you take rest, you know, चाय जो भी है, घूम रहे हैं, जो बड़ा, then again you get a 6 to 8 block, right, and then you have your dinner, right, and then you have another 2 hour block, and then you sleep. So just look at how much you can finish, ठीक है, मॉर्निंग आपने एक टॉपिक का कर लिया 2 hour 4 hours for a topic is more than enough to finish start with, and then 2 hours न्यूज़पेपर का आपका हो गया, मान लीजिए CSAT आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, then you have to decide when is your mind fresh, right, if CSAT cut off is a major issue, then I would say cut off नहीं हो रहा है तो फिर GS का कोई मतलब है नहीं, आप उसमें 100 से 100 स्कोर कर लो या 200 भी स्कोर कर लो, CSAT आपका नहीं हो रहा है, CSAT जिनका वीक है, तो CSAT will have to be given little more importance, right, and CSAT I will definitely discuss a lot more on CSAT when
with a question paper analysis and all, अगर time मिलता है तो जल्दी. But CSAT shouldn't be that tough. कितना CSAT का जिनका वो नहीं हुआ है CSAT का? आप है CSAT. इंग्लिश के कारण है कि क्या कारण है, क्या रीजन है? It's a question related to maths and mathematical questions. Time taking After tenth, questions. we lost that touch with that maths. So that's this year I joined the coaching staff हाँ, and preparing learning from basics many things. कोई किताब वगैरह यूज करते हैं उसके लिए CSAT के लिए? आपने यूज किए? कौन सा? अच्छा हरिनाथ. कोई और भी था ना CSAT? अच्छा, TMS नहीं यूज करते क्या? मगरो हिल का वही है ना, मगरो हिल का ही है ना, मगरवाल एजुकेशन का. हाँ ठीक. हाँ. तो लाइक दैट हैज बीन स्टैंडर्ड पीपल जो लोग फॉलो करते हैं. आई डोंट थिंक बहुत सारे बुक्स की जरूरत है. ठीक है. एंड CSAT कैन बी स्टडीड इन वेरी इंटरेस्टिंग वेज आल्सो. There are so many YouTubes, there are so many, because you don't need to consider CSAT study because it is developing a skill. It is not about developing a question answer, knowledge. It is about how do you approach a problem, right? And a lot of those things. And there I would say, even if you spend 1 hour or something on a YouTube, okay, interesting aptitude related YouTubes, we'll share some links I can find. So that is also in a very good way to keep yourself slightly relaxed in terms of reading, but develop this thought process of how to approach a CSAT problem, a logical reasoning or data numeracy or any of this. Okay. There are many ways to do it, especially data numeracy and all. There are many ways to solve the same problem. ठीक है. आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, जियोमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, उसको आप ग्राफ थ्योरी से भी कर सकते हो, बहुत सारे उससे आप एक ही चीज को कर सकते हो. पर उसके लिए आपको एक अप्रोच डेवलप करना है. वो anyway will come there. So you have your topic, 6 hours, then you have lunch, you take some if you have friends, okay, what I would suggest, if you're also preparing, I would suggest like lunch के बाद, मान लो 3 बजे तक टाइम है ना, तो 1 घंटे जो है उसको बोल सकते हैं कि यार मैंने हिस्ट्री के पढ़ा है, बस सवाल पूछ लो ना इससे to understand. So it is no more if you have friends, right? But you should be very clear to stick it to. So I used to do this with my wife, right? So initially वो prepare करती थी, उसको देखा कि इतना पढ़ना है तो उसने छोड़ दिया. But उसको फिर भी मैं बोलता था कि सवाल तो पूछ सकते हैं, मतलब. So because that was very important. So how much do you want to clear करना, है ना? अगर आपको ये, तो वापस मैं वही आऊंगा कि कितने लोगों को इसी साल क्लियर करना है इस डिसीजन में. वो नहीं है तो बहुत सारी चीजें और किल लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहा है इसका ये वो. नहीं, इसी साल करना है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, then everything, even 1 hour, half an hour that you get is important that you utilize for this, right? And उसके बाद अगर वो पूछते हैं ना तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है उस टाइम. तो वो उससे आपसे सवाल पूछते हैं, आप मान लीजिए उसका जो है उस चैप्टर का जो सवाल पूछ लिया, आधा घंटा आपने इधर डिस्कस कर लिया, इंटरेक्शन हो गया. So even if that 1 hour you going, but it is more into the topic thing only, right? You are refreshing these things. Maximum difficulty with respect to knowledge is not about learning, it is about retrieving. So yes, sir, sorry to interrupt you. This is the issue, sir, with revisions, sir. I'm learning, I'm reading everything, sir. But later on, with some period of time, then I don't forget, sir. So I have contested questions in exams, sir. So I get confused, maybe in 1 or 2 options, and I get that wrong, sir. And so the marks and everything later on. The reason for it is what I said was, learning is easy, right? Lot of things go inside, right? But will it come out when you want it? जब आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन तब वो आता है कि नहीं बाहर, है ना? वो रिट्रीवल जो पार्ट है ना, वो एक बार तो कम से कम दिमाग को वायर करना पड़ेगा, है ना, वापस आने का. तो उसके बाद आता है रिट्रीवल के बाद एक्सप्रेशन, वो मेंस में डिस्कस करेंगे. One thing is about learning, then it's about retrieving that knowledge, and then it's about expressing that knowledge, right? How do you express in a mains writing answer? That will come later. So retrieval के लिए मैं बोल रहा था कि previous year questions आप कर सकते हैं, but if you have a friend, right, and who is equally serious, वो मस्ती करने वाला मोड में है तो I would not suggest, ठीक है? But अगर serious है तो वो retrieval के लिए आपको help कर सकते हैं उसी दिन ही, सेम डे ओनली. जस्ट आपने ये पढ़ा है, इसमें 2 सवाल 4 सवाल पूछ सकते हैं कहीं से भी, तुम देख लो कि सब, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा. और आप मान लो उसका वो कोई और चैप्टर पढ़ रहा है, उसका पूछोगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर. देन यू कम टू, यू टेक लेट्स से CSAT, ठीक है? आई हैव टू डिस्काउंट फॉर मी बिकॉज़ आई डिड नॉट हैव टू स्टडी CSAT. तो वो एक वो रहता है. सो फॉर पीपल हु हैव टू स्टडी CSAT, विल हैव टू पुट दैट CSAT इनटू द डिस्कशन. सो मान लो इवनिंग है या फिर मॉर्निंग है, you keep that 2 hour slot at least,
ठीक है, I would not suggest much more than that because if you put 2 hours slot, 2 hours itself is too much. 2 घंटे भी अगर सीधे पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है, पर अगर 2 घंटे आप अगला 100 days पढ़ रहे हो, ठीक है, just like 200 hours, right, of CSAT, enough, right? तो वो एक आप उसका रख लीजिएगा, and then you go back to another topic, मान लीजिए ज्योग्राफी है या फिर या 3 to 5 हो गया, उसके बाद या 6 to 8, then you have a dinner and then 10 to 11 at जब तक सोना है तब तक के लिए आपका, उसमें आपका जो दूसरा एक टॉपिक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, whatever, right? I would suggest take one heavy and one light, ठीक है, when you are selecting, जो आपको सही लगता है, जो heavy है वो और एक लाइट है, और उसके बीच में एक आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपका करंट अफेयर्स हो गया उससे पहले, और इवनिंग के टाइम पे आपका सीसैट का हो गया, ठीक। इस तरीके से आप सिलेबस बना लो एक बार, एंड देन आप फिर ये नहीं होगा कि 15 दिन में आप कंप्लीट करो, मैं नहीं कर पाया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक, नहीं कर पाए तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि यू स्टार्ट फिनिशिंग स्टफ, व्हिच इज वन वे टू डू इट, जस्ट टू हैव एन आइडिया। अदर वे टू डू इट इज, मान लो एक चैप्टर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, ठीक है, उसका आप रहने दीजिए। कभी जब एग्जाम के पहले जो फास्ट रीडिंग ही करना है तो एग्जाम के पहले भी कर सकते हैं आप उसको, उसकी जो चैप्टर कर रहे हैं उसको थरो, जो सवाल है वो सब करके आप उसको छोड़ सकते। बट व्हेन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट, वन डे इधर उधर जाना चलेगा, एक दिन मान लो आपने हिस्ट्री का एक्सटेंड कर दिया वो चलेगा, पर वो 3 दिन हो रहा है तो नहीं चलेगा, बिकॉज दैट नाउ इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। और इसमें क्या है, हिस्ट्री का आपने 80% कर लिया है तो अराउंड आपका आना है जितना आना है आगे ऑलरेडी, ठीक है। तो वो एक दिन इधर उधर आप कर सकते हैं, उसके आगे का जो है you'll have to start according to schedule, keep जो भी मैं कैलेंडर बनाता था और वो हर दिन वो कैलेंडर चेंज भी होता था, आप कैलेंडर बनाओगे अगले नया कैलेंडर बनाओगे। बहुत लोगों ने मैंने देखा है कि मैनेजमेंट में बहुत टाइम लगाते हैं कि प्रिपरेशन का शेड्यूल बनाते हैं, फिर उसका चार्ट बनाते हैं, फिर उसको कलरिंग करते हैं, फिर उसमें एक्सेल शीट बनाते हैं, फिर उसमें, है ना, तो उसमें ही आपको प्रिपरेशन में इतना मजा आने लग जाता है कि आप प्रिपरेशन को एंजॉय करने लग जाते हो कि मतलब, है ना, मेरा इतना हो गया, मेरा ये पीवाई हो गया, ये कुछ है नहीं, दिस इज नॉट व्हाट यू आर डाइंग फॉर, है ना। ये तो एक आपका स्ट्रगल है कहीं और पहुंचने का। मैं तो यूपीएससी को भी एंड नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से यूपीएससी भी एक स्ट्रगल है कुछ जनता का कुछ भला करने का, ठीक है। वो यूपीएससी इज नॉट, वो भी एक एंड नहीं है, वो भी एक मीन्स ही है। तो पर प्रिपरेशन को एंड मत बनाओ, है ना। बहुत लोग प्रिपरेशन को ही एंड बनाते हैं, उनको सब कुछ पता होता है प्रिपरेशन का, they know everything about preparation, they know where this question has come from, they know what this, but they are not in the service. This is where the difficulty is. I'm not denying that wrongly or I'm not trying to reduce, but what happens is you, for whatever reason, मेरा तो बहुत बड़ा luck factor था, I never liked geography, geography पसंद ही नहीं था। अब तो geography का 15-20 क्वेश्चन आता है ना, अगर, और मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं पढ़ता, तो एनसीईआरटी के अलावा होता है तो होता नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। That much was there, that much of, because geography is so much of facts, right? And I never used to like geography, and I NCERT के अलावा कोई किताब NCERT भी वैसे देख के गया, and thankfully not many questions came. So it's not about preparation, you definitely need a lot of luck का तो फैक्टर है ही। I myself will consider कि यूपीएससी निकला is not because पूरा स्टडी किया इसलिए सब कुछ आता था, ऐसा तो था नहीं। लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिनका नहीं होता है उनके लिए भी लक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिनको होता है उनके भी लक बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है 50% जो सवाल इधर जाता था वो इधर भी आ सकता था, so all that be given, but how do you maximize your chance, उतना ही है ना। तो प्रिपरेशन में ही कंफर्टेबल नहीं होना, प्रिपरेशन का चार्ट और वो सब याद रखना है कि वो एक अपने आप को कंट्रोल में रखने का एक टूल है कि हमको इतना पढ़ना है, इतना स्टडी करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कोई गेस्ट आएंगे कभी कोई। How many of you staying with family? You're staying with family. Family. Married? Single. Parents के साथ. Married. Not married. You know, I was married, so there's nothing to. तो इसलिए मैंने पूछा कि I started preparing after marriage, after 2 years of marriage, है ना। 2 साल के बाद preparation का शुरू किया। तो why I asked is, the rest of all you're like अपना room लेके पढ़ाई कर रहे हैं, या room में और भी लोग हैं। How difficult is it to study ऐसा? We go to libraries. लाइब्रेरी में सब लोग लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ना हो पाता है उधर, अपना अपना जगह मिल जाता है, एरिया आराम से बैठ के स्टडी करने का, then it is okay.
एंड ये वाला शेड्यूल लाइब्रेरी में मेंटेन कर पाएंगे? Yes, sir, but 5 बजे तो नहीं हो पाएगा, 6 बजे तो नहीं हो पाएगा, 7 o'clock. 7 o'clock, इसलिए सबका शेड्यूल शायद 7 o'clock है, बट मेरा एक कंसर्न है कि 7 o'clock ना थोड़ा लेट है पढ़ाई शुरू करने की। Study in room also, sir. No problem. They all get sleep at that time. So that is. Okay, so why I say is 7 o'clock is slightly late. It's actually for me personally starting में उठते हुए तो एकदम पानी ऐसे आंखों से पानी निकल रहा था, क्यों मैंने ये क्या पंगा लिया, चाहते नौकरी था है ना, because earning very well, तो ऐसे ऐसे क्या जिंदगी के साथ किया टाइम ऐसे बैठता था। 15 मिनट ही होता है वो, 15 मिनट के बाद ना पढ़ने का है ना, 2 सवाल देखता था, चैप्टर देखता था, क्यूरियोसिटी चाहिए, ठीक है, प्रिपरेशन में खोना नहीं है, पर क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जगा के उसमें इंटरेस्ट में रखेगा नहीं कोई। क्या है, ऐसा क्या हुआ था, ऐसे व्हाट हैपेंड, है ना, ये सवाल है, तो ये इंटरेस्टिंग है ना सवाल भी, तो किसी ने अगर पूछा है 3-4 चीजें, वो कुछ नॉलेज तो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है, वो क्यूरियोसिटी आपको थोड़ा जगा के रखेगा, थोड़ा सा तो कुछ तो चाहिए। आई एम नॉट सेइंग क्यूरियोसिटी इटसेल्फ, बट समथिंग नीड्स टू बी देयर, जो कि आपको उस टाइम, और वो 5 दिन के बाद ना वो आज तक चलता है। आज मैं पढ़ता नहीं हूँ, सुबह उठ के बैडमिंटन खेलने चले जाता हूँ, पर टाइम वही है तो वो आदत बन जाते हैं, फिर उसके बाद ना यू स्टार्ट गेटिंग अप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड दैट बिकम्स अ वेरी प्रोडक्टिव आवर फॉर यू, बहुत ज्यादा, बिकॉज़ नो डिस्टर्बेंस, नथिंग, 15 मिनट्स यू गो टू वेस्ट, डजंट मैटर, 5:30 हो जाएगा, 6 हो गया, डजंट मैटर, ठीक है, 6 बज गया, कोई बात नहीं, बट ट्राइंग टू डू दैट विल गिव यू दैट 1-2 hour additional before the rest of the world starts, you actually achieved something। बाकी दुनिया जागने से पहले आपकी जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया आपने, वो जाग रहे हैं अभी, है ना, वो गिव्स यू समथिंग डिफरेंट, राइट, इन एडिशन टू दैट। सो आई सजेस्ट, अगर किसी का नींद बहुत ज्यादा वो, तो आई वुड नॉट से दैट, हेल्थ वगैरह इश्यू है तो, बट ट्राई इट आउट इफ इट वर्क्स फॉर यू। सो लाइक दिस, इफ यू आर एबल टू मेक योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 100 days, let's say, and always go with previous year things, and try to do those revision, like I said, if you have a friend or something, just in a day, and weekly अगर Saturday Sunday या कभी मिल सकता है, you can tweak the schedule also, हर टाइम ऐसे होना जरूरी नहीं है, वीकेंड में हो सकता है कि एक बार पीछे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बार आप देख लो, और यार डिस्कशन कर सकता है एक बार क्वेश्चन आंसर की तरह, बट मेक श्योर दैट इट डजंट गेट इनटू अ डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट और क्या हुआ है ना, वो याद रखना है, इसी चीज के लिए है, we are not getting involved into that in mains, but I would argue, or in interview I would argue, you should debate and disagree, ठीक है, not for prelims, because there you have to express, so जितना आप अपने से express कर पाते हो उतना अच्छे से आप पेपर में भी लिख पाएंगे। even I'm not saying go 4 घंटे discuss करो, but many times in mains it becomes about expression rather than just retrieval and analysis and knowledge, it's about how do you write, how are you able to write it down in a very comprehensive way, right, how do you make your case, जो भी आप ऐसे लिखना है उसमें, है ना, so that will come there, so this is what I would suggest to begin with, and then of course last 20 days you have, right, last 20 days से तो क्या है, mostly पेपर वगैरह सेट हो जाता है, करंट अफेयर्स का थोड़ा कंपोनेंट उसके बाद का कम रहेगा, पर इनका इश्यू क्या रहता है, इनको पता है कि अगला 20 दिन भी क्या होने वाला है, मतलब जनरली, ठीक है, तो वो because people, all of us know now what is going to be in the next 10 days, right, so उसका भी थोड़ा बहुत आप रखना चाहिए, you should not completely leave everything, I would say that मेरा जो उस टाइम का जो मेंस का एग्जाम था, like I got some 8 marks for some मेंस का एग्जाम में प्रिपेयर करते हुए, खाना ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी पे कुछ न्यूज आ रहा था, वो न्यूज था F1 रेस का, और F1 रेस में वो सेगमेंट था कि डिफरेंट, दूरदर्शन में ही था, वो क्यों बताता हूँ, दूरदर्शन का एक सेगमेंट था डिफरेंट F1 का हाफ एन आवर सेगमेंट, व्हाट इज फॉर्मूला 1 ऐसे ऐसे करके, उसमें डिफरेंट फ्लैग्स और ये वो मतलब ऐसे रैंडमली वो देखे गया, बिकॉज दैट वुड हैव बीन प्रोग्राम्ड, that program would have been shot and directed at least 1 month back, Yes. है ना, उस दिन दिखाया वो अलग बात है, ठीक है, but the question was 8 marks की different kind of flags on F1, now it's very difficult, अब इसके लिए कोई प्रिपेयर तो करता नहीं है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग्स इन F1 तो कोई पढ़ाता नहीं है, अब उसके बाद पढ़ाने लग गए होंगे उसे क्वेश्चन के बाद, तो फिर तो जो भी इस साल का क्वेश्चन है अगले साल का सिलेबस है, जनरली वैसे रहते हैं, पर प्रिपेयर करते हुए आप नहीं सोच सकते कि आप 100% प्रिपेयर करके जाओगे इस साल के लिए ना, तो लॉट ऑफ इट इज पेरिफेरल नॉलेज, सबका जो पेरिफेरल नॉलेज, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, कि न्यूज़पेपर चाहे जितने भी एनालिसिस फॉरम ये वो लेके आए,
वो सब यूपीएससी का प्रिपरेशन के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो दे विल गिव अ वेरी क्लियर एक्सपाइसर। बट व्हाट इज द पेरिफेरी अराउंड इट, उसके इर्द गिर्द में क्या है, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि आप एक डायरेक्टली एक ही में तो नहीं देखोगे, उसके चारों तरफ का जो हेडलाइन भी आपको आंक तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कहीं वो पेरिफेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज 8 मार्क्स, जिसको आता है 8 मार्क, जिसको नहीं आता है 8 मार्क, कितना लोगों को बना होगा सिविल सर्विस, कितना नहीं बना होगा, just imagine, right? So this is where how I would suggest that, like, when you look at your newspapers and even when you discuss and all these things, you can slightly move around or around here and there, it's okay, it will help you, but not too much also, okay? Then after 20 days, the last 20 days, of course, you have to go for revision, right? You can go for revision, there will be mock prelims, I'm pretty sure mock prelims, especially for those who are doing CSAT, you should start your mock CSAT, weekly CSAT होता होगा ना, तो मैंने वही किया था, 2 बार मॉक सीसेट दिया था, उससे इतना ही किया था, बट अभी से होता होगा नहीं, है ना? तो वो देते हो, यू गिव, आप भी, Yes, तो उसमें कैसे आता है अभी? this अभी CSAT का नहीं हुआ है, नहीं, मॉक सीसेट का शुरू नहीं हुआ, maybe next Sunday। नेक्स्ट संडे से है, अच्छा 3 से 4 डेज के बाद एक CSAT नहीं, अलग अलग चीज होता है ना, क्या नेट में तो हर दिन 10 सीसेट क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको एवरी डे, राइट? यू कैन जस्ट गिव इट फॉर, जैसे फ्री टाइम, मतलब यूपीएससी के प्रिपरेशन में सीसेट फ्री टाइम मतलब क्या है, 10 सवाल कर लिए, ठीक है, मतलब आप रेस्ट ले रहे हो, मतलब क्या है, 10 सीसेट का सवाल कर लिए, 10 जो है सिंपल क्वेश्चन देख लिया क्या है, ठीक है, वो है नहीं कि बैठ के 3 घंटे का मूवी देख लिया, वो है ही नहीं। आपका पढ़ाई मतलब हाई इंटेंसिटी पढ़ाई, आपका रिलैक्सेशन मतलब लो इंटेंसिटी पढ़ाई। तो ये नहीं है कि नॉट सेइंग कि वैसे, मतलब यू कैन टेक योर ब्रेक, यू कैन टेक, एंड आई यूज्ड टू गो फॉर मूवीज, एंड क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, है ना, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं इसको, मतलब वो थोड़ी नहीं कि वो पूरी टाइम मतलब रहेगी, तो हम लोग ऐसा नहीं है सैटरडे संडे जाते थे, पर सेल्फिश होना भी जरूरी है। सेल्फिश होना इसलिए जरूरी है, मैं लास्ट टाइम भी शायद कुछ लोग थे जो डिस्कशन में, बहुत सारे इसी 4 महीने में बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग बुलाएंगे आपको, शादी होगा किसी का, कजन का, बहन का, भाई का, बहन का भाई का तो मत जाना पड़ेगा थोड़ा, अगर वो है ना, बाकी वो सब में टाइम चला जाता है, ठीक है, वो आप रोक नहीं सकते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रोक सकते हैं, आप उसको उनको नहीं बोल सकते मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए तू शादी मत कर, ये तो नहीं बोल सकते, ठीक है, पर आप ये जरूर उनसे कह सकते हैं कि मैं आ सकता हूँ, पर ज्यादा टाइम नहीं बिता सकते, है ना, और जितना मैं इस टाइम आपसे ले रहा हूँ, है ना, जो भी टाइम मैं आपसे थोड़ा ले रहा हूँ सेल्फिश होके, उसे 10 गुना ज्यादा मैं वापस आपको कर पाऊँ मेरे लाइफ में, वो एक आप क्लियर, जितने भी आपके जो नियर नेबरिंग, जो भी नियर बाय लव्ड वंस जो भी है, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा, दोस हु आर हैविंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सबसे भी, है ना, इन सबको भी ये चीज क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा कि ये जो टाइम है ये मेरे लिए, ये जो 4 महीने है ना, उसके बाद अगला 4 महीने भी मेरे लिए क्लियर तो करोगे ही करोगे, है ना, उसके बाद थोड़ा टाइम दे सकता हूँ, उसके बाद यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, बाकी की टाइम सरकार पर जब आपका टाइम सरकार का हो जाएगा तो उनको अपना टाइम मिलेगा, they will get their time, right? So that has to be the choice, that it has to be selfish, okay? Here मैं जनरली उस टाइम में बोलता था कि it is a selfish pursuit of a selfless goal. Selfless goal is what to improve. अगर एक आदमी का भी जिंदगी सुधार सकता है तो वो सुधारना चाहिए, ठीक है, वो एक सेल्फलेस गोल है आपका, पर द परस्यूट इतना ज्यादा सेल्फिश है, क्योंकि आज मान लीजिए बाहर आपका आपका पढ़ाई का टाइम हो गया, है ना, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया बाहर, क्या करोगे? That's a difficulty, that is a dilemma. As a human being, you should definitely help, right? You should go do whatever is required. As a civil service aspirant, do you postpone the good work today? I don't have an answer. I'm just trying to tell this, right? You will decide according to your whatever needs to be done. But it should, otherwise it shouldn't have been a dilemma at all. किसी का तो बाकी सब कुछ छोड़ के आप वही करेंगे,
मान लो 2 दिन उसके साथ जाना, मान लो कोई दोस्त का तबीयत खराब हो गया, तो 4 दिन हम वही बिताएंगे, है ना? तो 4 दिन बिताएंगे, ऑफकोर्स बिताएंगे, मैं नहीं करेंगे उसको नहीं बिताना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें भी पढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। Nothing is waiting, right? And उसके बाद you will get to help, you will definitely get to help a lot more, you will definitely able to provide जो भी आपकी social obligations है, जो भी आपकी जो personal obligations है, वो सबको meet करने का उनके expectation से कई गुना ज्यादा, उनकी जिंदगी में जो expectation था उससे कई गुना ज्यादा provide करने का भी आपको मौका मिलेगा, है ना? पर ये जो है टाइम आपका है, और ऐसे भी है, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि I'm just getting slightly get moved away from the topics is because this is a long preparation. So it is not just about managing topics. कि हिस्ट्री पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, है नहीं। 4 महीने एक शेड्यूल मेंटेन करना मुश्किल है। It's very difficult. I have seen people who have lost 57 kgs, है ना? In just brilliant people, brilliant. She is now in, I think, Apple or something in US. ठीक है, brilliant people, right? But because the toll it takes on you. Once you give, second time you give, then you start getting कि कुछ हो नहीं रहा, या फिर कुछ जो है comfortable हो जाते हैं preparation में, okay? Those who have family wealth and all, it is fine. But जिनका नहीं है, then suddenly you start getting anxious. कि अभी ना इधर का ना उधर का, छोड़ दूं, सपना था, मेहनत भी किया, मौका भी है एक और, पर उतना तक बाकी चीजें वेट नहीं कर सकता. So lot of things comes. It's also about maintaining your mental health. तो आपका जो है ना वो फोकस, उसमें आपको ये फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, है ना? ये जो मैटर है, तो दैट इज वेयर कभी सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूरे टाइम पढ़ाई करना है. कभी हो सकता है आपके मन करे बहुत टाइम हो गया कि मेरे को 2 घंटे कोई मूवी देखना है, तो दोस्तों ने बुलाया, घर वालों ने बुलाया, नहीं गया, पर आप मूवी देखने के आपके मन करे आप जाएंगे, उसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है ना? क्योंकि इसमें क्या है, इफ यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, इफ यू आर नॉट फीलिंग मेंटली हेल्थी, यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक एंड स्टडी द नेक्स्ट 2 hours. That is a key aspect to it. So if you have to give this, that is why I said I would not suggest to make it a 3-year long process. एक साल ही बहुत बड़ा वो है. Even 1 year is too difficult. So if you're creating it this year, if you're planning for this year, whichever attempt it, आपके पहला attempt हो सकता है, second हो सकता है, third हो सकता है, doesn't matter. ठीक है, जो भी attempt हो, पर plan जो है इसी साल निकलना है. इस जो भी कर रहे हैं तो इसी साल में, ये 4 महीने कर रहे हैं तो ये 4 महीने निकलेंगे. जो 24 में देना चाहते हैं, जो 25 में देना चाहते हैं, आप मान के चलिए कि आप 24 में दे रहे हैं, आप प्रिपरेशन ऐसे शुरू कर लीजिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स का. You don't give it. I'm not saying give it or anything, but at least the static part of it you finish it. Otherwise क्या है, optional है तो एक ही तो optional है. You'll be able to finish it in like 4 or 5 months. It's not very difficult to finish an optional. इसके बाद बहुत आसानी से optional हो जाएगा, ठीक है? So but clearing pre is must. 2 things to get the experience about what UPSC is. Pre तक का जो है ना आपको आइडिया नहीं लगता. प्री आपने दे दिया, वो तो एक एमसीक्यू टाइप है, वो कर दिया, छोड़. 2-2 घंटे बैठ के, 3-3 घंटे बैठ के एग्जाम लिखने का जो है ना, वो तो कब का छोड़ चुके हैं. वो मेंस एक बार आप देंगे, जिसमें हर दिन जाके जो लंबे पेपर लिखने का, उसमें वो एक्सपीरियंस एक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से भी आपको फीडबैक बहुत मिलेगा. मैं अपना बताऊं, इसलिए मैं प्री का बता रहा हूँ कि मेंस क्लियर हो ना हो सेकेंडरी है, बट प्री क्लियर होना जरूरी है 100% इस टाइम, बिकॉज यू गेट टू राइट योर मेंस. Once you get to write your mains, you will get a lot of feedback from there also. ऐसे था 250 मार्क में, पहले अटेम्प्ट में शायद मुझे बोला 18 मार्क, 18 या 24 ऐसे कुछ, 25 पेज लिखा था मैं. वही बोलता एक पेज का 1 नंबर भी दे देता तो इससे ज्यादा तो मतलब of course अगली बार चेंज हो गया, अगली बार I think it was 140 or something like that. But I didn't know what to. मेरा अपने मन में था वो लिख दिया, मेरे तुम बहुत अच्छे से लिखा. But that also had take one feedback. एक फीडबैक तो चाहिए उसके लिए कि हाँ ये जो आपने लिखा है वो तरीका सही नहीं था, क्या आपने ना एनालाइज किया, मुझे जो सही लगा मैंने वो लिख दिया, दोनों तरफ नहीं प्रेजेंट किया, उसके बाद एक कंक्लूजन पे नहीं लेके आया, और मेरा एनालिसिस का रीजंस नहीं दिया, उसको कंक्लूड मतलब वाइंड अप नहीं किया, बहुत सारी चीजें नहीं की. इंस्टेंट मैंने जो लिखा कि ये गलत है ऐसे करके लिख दिया. हाँ, तो पूरा एक बहुत आइडियलिस्टिक जो 18 पेज से कुछ होता नहीं. सो बट you need that opportunity एक बार, राइट? तो इसलिए प्री इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात जो है ना, प्री इज एक्चुअली अबाउट एलिमिनेटिंग नॉन सीरियस कैंडिडेट. क्या है, इतना लंबा लोगों का तो पेपर चेक नहीं कर सकते, तो सीरियस लोगों का ही पेपर चेक करेंगे, ठीक है? 10 लाख लोग तो प्री देते हैं, 10 में से कितने का मेंस में हो जाता है? 10,000, है ना? 10-12 अज्यूम 10, है ना? सीधा जो है ना वो एलिमिनेशन है, वो एलिमिनेट, ये 10,000 सीरियस है, ठीक है?
ये 10,000 में से तो फिर उसके बाद तो रेशियो देखना कितना डिफरेंस है. Every 1 out of 10 who gives mains, जिसका इंटरव्यू कॉल नहीं, सिविल सर्विस, 10,000 मेंस देते हैं, कितना सीट है? 1,000, है ना? तो आपने प्री क्लियर कर लिया, उसके बाद जो है ना 10 में से 1 बन गया तो यूपीएससी हो गया. प्री इज बिग बिकॉज ह्यूज थिंग, लार्ज चंक ऑफ पीपल. क्योंकि 10,000 में से कितना लोगों को मैं उसमें बुला दिया इस बार, शायद 2800 बुलाया, 20 है ना, 2800. तो व्हाट इज दैट? अराउंड 3 से 4 लोगों में से 1, 4 लोगों में से 1 को बुला लिया, है ना? आउट ऑफ every 4 who write main, 1 person is called for. तो आप अगर बैठे हो मेंस के हॉल में, 4 में से 1 तो जा रहा है, इतना है. It's become so close after that. But pre divides that whole thing. Huge thing. वहां पे आपको वो, इसलिए जो 4 महीने हैं ना, ऑप्शंस के बारे में सोचना है, ना मेंस के बारे में सोचना है, ना इंटरव्यू के बारे में सोचना है, ना मैं क्या कौन सा सूट पहनूंगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू में सोचना है. ठीक है? ये सब कोई सीन ही नहीं है. सब कई बार पढ़ने में क्या होता है ना, मैं भी ऐसे करता था, 2 लाइन पढ़ता था, 15 मिनट सोचता था मैं आईएएस बन के क्या. तो उससे मेरे को एनर्जी मिलता था. ये बात है कि मैं ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकता है. कभी पत्ती और लाल गार्ड ने वो सब में इंटरेस्ट था नहीं, अदरवाइज रिजाइन करके यहाँ नहीं बैठे. तो उसमें था नहीं, बट इट वाज अबाउट हाउ कैन यू इंप्रूव, क्या क्या चीजें हो सकती. पर उसमें भी मेरे को बहुत दिमाग लगता था कि ऐसे आई शुड थिंक अलॉट. सो बट कभी कभी ना ऐसे सलमान खान या अनिल कपूर टाइप ना, कि ऐसे बैठ के 2-3 घंटे ऐसे बैठ के ऐसे सपने देख रहे हैं, वो पूरा निकल जाता है. इट्स ओके वंस इन अ व्हाइल, बट डोंट थिंक टू मच इनटू इट, राइट? प्री क्लियर करके थोड़ा और सपना देख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा, क्योंकि 10 में से है ना, तो 10 में से 1 तो हो ही जाएगा, चाहे कोई भी एक रैंक आ जाए, पर यू विल गेट इनटू. इंटरव्यू होने के बाद तो 100% देख सकते हैं. 1:3, राइट? 1:2.8. मतलब 3 लोग इंटरव्यू में गए आपके वहां पे, उसमें से 1 तो होना ही होता है. IAS is a different story. I'm not talking about IAS per se, but at least the first thing about getting into the UPSC rank list, right? So pre give you 100%. Okay, I didn't get into all the topic or the questions or subjects or anything, because इस टाइम जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज के लिए जा रहा हूँ. We are in Kerala also. तो वो सिविल सर्विस मॉक इंटरव्यूज के लिए जितने भी कैंडिडेट्स है उन सबका उसके लिए जा रहा हूँ. मोस्टली द current scene is about mock interviews only, right? But the people who are giving preliminary, उनके लिए एक fresh शुरुआत है. So we'll try to have a lot more topic wise detail. I had written some, but I think you have more information than me on most of these things. इसलिए मैं उस पे ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ. चाहे ज्योग्राफी है, NCERT है, GC लॉन्ग है, ये सब तो किताब, you know about all this? Yes. You know, right? Yes. Okay. I think these are all very much there. लक्ष्मीकांत तो सबको पता ही होगा, है ना? तो इकोनॉमिक्स आई थिंक मोस्टली नितिन संघानिया है, सुना है? ओके. और एनवायरमेंट पर इकोलॉजी थोड़ा सा अलग अलग चीजें आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 से 20% का क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उसमें से. और उसका कुछ तो शंकर का सुना है कि अच्छा है ना? हाँ, उसका एकेडमी का. माजिद हुसैन का किताब है, तो राजगोपालन का है. So you can look at it. Of course, sources you will find. I don't think sources is not going to be, and no source will give you 100%. So have to be clear. क्योंकि जो clear कर रहे हैं, जो highest अपने आप को सबसे बड़ा प्री का नंबर भी बोल रहे हैं, वो भी शायद 60% ही लिए होंगे. 120 नंबर आया होगा, 130 नंबर आया, 70%. उससे ऊपर तो नहीं आ रहा है. बट बात है कि प्रिलिमिनरी में 190 आके भी कोई फायदा नहीं है. Doesn't matter, right? The thing is about the next stage. It is about clearing that hurdle, right? So keep these things in mind. Create So you'll create a schedule, okay? Divide your days into different blocks. Keep it slightly hard and light, right? Keep a buffer, जो भी आधा घंटा दोनों के बीच में, आधा घंटा 1 घंटा भी हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है? बीते हुए दिन की सोचना ही नहीं. कल मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, doesn't matter. इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है सम कॉस्ट का, पता है? चलो बताता हूँ. मान लो आपने एक थिएटर इकोनॉमी की एनीवे हुई, आपने मान लो एक टिकट बुक कर लिया, ठीक है? 500 रुपए का टिकट मूवी का है. कौन सा था जो गंदा मूवी आया अभी, बहुत ही खराब है?
अरे मैं तो बहुत अच्छा था नहीं सॉरी अभी सर वीडियो ले कुछ और बहुत फिर तो बहुत अच्छा था सारे मूवी अच्छे लगते हैं टाइगर 3 तो लोग घर पे आके मारेंगे हाँ चलो टाइगर 3 डजंट मैटर मैंने देखा नहीं है तो टाइगर 3 मान लो मैं आपने टिकट ले लिया 500 रुपए का और उसके बाद आपको पता चल गया है कि मूवी खराब है ठीक है टिकट एडवांस बुकिंग कर लिया आपने और कल के लिए कर लिया और आज के सारे रिव्यू आ रहे हैं कि मूवी खराब है और आपका 100 रुपए का है मतलब 50 रुपए का ही है मतलब वहां से थिएटर तक तो आप मूवी देखने जाओगे कि नहीं जाओगे हैं जाएंगे कितने लोग जाएंगे हाथ ऊपर करो कितने लोग जाएंगे ऊपर करो हाँ इतना ऊपर करो प्लीज ओके कौन कौन लोग नहीं जाएंगे बाकी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे अभी मूवी देख टिकट कौन खरीदता है अभी ऐसे नहीं बाकी लोग नहीं जाएंगे रीजन है इट्स नॉट इट्स एन इंटरेस्टिंग कांसेप्ट हाँ बट आप लोग नहीं जाएंगे कि जाएंगे 500 का टिकट लिया है मूवी खराब है पता चल गया है बिल्कुल ही खराब है और 50 मतलब सुबह जो है 50 रुपए का ऑटो से आप थिएटर जा सकते हैं ठीक है आप लोग अगला दिन मूवी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे सब लोग जाएंगे कौन नहीं जाएंगे वो बता दीजिए आप नहीं जाएंगे हाँ क्यों नहीं जाएंगे तो ये जो है ना दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ संक कॉस्ट एंड थिंकिंग एट द मार्जिन ठीक है इकोनॉमी में आप जब सोचते हैं आपका 500 रुपया जो है ना दैट इज संक कॉस्ट वो मूवी तो खराब है तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है लेकिन मेरा नहीं सुनता आपका आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है नहीं मूवी खराब है पता चल गया दूसरा टाइम वेस्ट होगा है ना कॉस्ट बताओ ये टाइम जो है ये इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये टाइम में आप क्या कर सकते थे पढ़ाई कर सकते थे मान लो कोई और मूवी देख सकते थे या घर पे बैठ कुछ भी कर सकते थे पढ़ा भी नहीं थी मान लो उसका 200 रुपए का वैल्यू है मान लो ठीक है 250 और फिर ऑटो रिक्शा का 50 500 इज सम कॉस्ट 500 का आप कुछ नहीं कर सकते वो आपका गया चाहे आप देखे ना देखे अभी आप क्या कर सकते हो आगे का जो डिसीजन है वो आपका बेस्ट डिसीजन कर सकते विद दिस नॉलेज 500 is gone movie is bad I'm not going to enjoy now what do I do next should I put that additional 50 rupees then that 50 also becomes into sunk cost क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है मूवी तो खराब हो गई है ऑलरेडी है ना तो आप जो है ना ये डिसीजन है डिसीजन एट द मार्जिन लाइक वो जो है ना उसका मार्जिन पे आप डिसीजन लेते हो आगे का सोच के 50 रुपए डालने पे मुझे क्या आगे मिलेगा अगर मान लो 50 रुपए का वर्थ है मान लो मूवी तो शायद 50 रुपए मतलब आप उसे लगा सकते हो चाहे इवन एट दैट पॉइंट बट वो भी नहीं है राइट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एट द सो yesterday is sunk right this will you'll come to this opportunity cost sunk cost ये सब का आइडिया आपको आना चाहिए वैसे भी you should have an idea fair idea on this through your preparation when it comes to economics also you'll read some part of it I would not say you'll read all of it but some part of it ठीक है but sunk cost is an important concept even otherwise in life कई बार हम ये सोचते हैं कि इतना तो हमने कर ही दिया तो थोड़ा और कर ही लेते हैं पर जो कर लिया वो हो गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते अभी क्या कर सकते हैं आज का मैं अगला नेक्स्ट हाफ एन आवर जो है ना वो कैसे बेटर बेस्ट कर रहे थे तो वो कर सकते कल मैंने पढ़ाई नहीं किया वो सोच के मैं आधा घंटा और सोचते रहूं कि यार कल तो पूरा बर्बाद हो गया इफ आई थिंक लाइक दैट देन अनदर हाफ एन आवर इज गॉन इनटू दैट ऑटो रिक्शा 50 रुपए अभी पूरा खराब मूवी देखने के लिए 500 की जगह पे 550 लगा ठीक है सो दिस इज हाउ इट गोस सो दैट आई वाज यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सunk कॉस्ट टू एक्सप्लेन जो नहीं हुआ उसके बारे में नहीं सोचना मैंने अभी तक ये नहीं किया अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा अभी तक वो ऐसे वाले प्रिपरेशन नहीं किया अभी मैंने उस none of it matters what matters is your decision right now to improve your future आज का जो डिसीजन है वो कल के लिए आज कल तक मैंने क्या किया वो सब हो चुका है everything is over everything is in past and generally also in life like
I've taken many decisions in my life. To leave, to study, to get in, to leave, then all that, right? But generally about life is how do you make yourself the best out of it. Next is what do you do in the next? What is your next decision to make the next best out of the future? Not about what you invested. कई बार sunk cost का concept है continuing UPSC preparation की एक दिक्कत. कई बार क्या लगता है, but I would not call it entirely sunk cost क्योंकि उसकी बहुत सारे value आपको अगले साल भी मिलता है. But हमने 2 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया, 4 साल लगा दिया, तो 1 साल और करते हैं. तो 1 साल और करते हैं. I met people who are studying for 10 years. Right? Now I understand their passion. Okay, sometimes they're really good and they want to get in, and this is a passion for a lot of people. This is, and it also shows their determination also to the positive side. है ना कि उतना determined है कि मुझे ये मेरा choice है and this is what I will achieve no matter what. That's a positive side of it. If that is a reason, fine. But if the other is a reason, मैं अभी already कर चुका हूँ, तो maybe I can do little more. Then वहाँ पे at some point आपको एक decision लेना पड़ेगा. What ये सही है या नहीं है? Not based on sunk cost, based on आज का जो decision है कि कल का क्या करना चाहिए. ठीक है? तो don't worry about yesterday's. What you did yesterday or previous day, एक दिन मिस हो जाता है, सबका मिस होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं मिस होता. Try to create, but this is not the max best. आप लोगों ने सब ऐसे बना रखे हैं, सब किसी ने शेड्यूल बनाया, आपने बनाया सब पढ़ने का डेली शेड्यूल 2 घंटे ऐसे करके. हाँ, तो जो आपका चलता है आपने कैसे बनाया एक बार शेयर करेंगे तो I'll just finish it up in 2 minutes. मेरा 2 या 5 बजे तक का टाइमिंग क्लास में जाता है. ओके, तो उसके बाद क्लास में अभी प्रीलिम्स के लिए पूरा प्रिपरेशन बच्ची के साथ आपके बैच लगाना. इसलिए अभी ऑप्शंस का तैयारी कर रहे हो आप? ये हो गया. अच्छा हो गया ना. हाँ ठीक है, प्री के अभी. हाँ मतलब मेरा टाइमिंग क्लास में ज्यादा चलता है, तो इसलिए मैं अभी क्लासेस जो है किसका है पूछ रहा हूँ. जीएस का भी है और ऑप्शनल में मॉडर्न हिस्ट्री. तो अभी आपका जो है ऑप्शंस का तैयारी जारी है क्या? कब तक? वो अप्रैल में खत्म होगा मॉडर्न ऑप्शंस का. Okay. I'm not very much in favor of it. क्योंकि especially considering कि आपका प्री लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ है ना, तो I understand कि क्यों आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं मेंस वो है ना कि अभी एसी में निकल जाएगा करके. पर अप्रैल मई तक आप ऑप्शन पढ़ो. ये तो बाकी कौन लोग करते हैं ऐसे, कौन कर रहे हैं पूरा ऑप्शन? अच्छा, एट सम पॉइंट पूरा टाइम ऑप्शन है. मुझे पता है पूरा टाइम नहीं, इवन आधा घंटे में बोले 5 मिनट भी है ना. एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक अ कॉल. सम पॉइंट ऑफ कोर्स हिस्ट्री इज ओवरलैपिंग एंड ऑल, आई एग्री, ऐसा नहीं है कि नहीं है. But studying for mains is slightly different, right? Studying for prelims is different. And when you start looking to study for prelims, you have to study for prelims, study for previous year questions on the basis of that, how that elimination, how to answer, how to give the mock test. वो सब में आपको 2 घंटे ऑप्शंस पढ़ने के लिए है. उसमें सजेस्ट करूंगा आप सीसैट का 2 और मॉक दे दो आप, है ना. That you have to be very clear. जब तक आप करते, जनरली लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है ना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऑप्शंस कर लेते हैं, है ना. जनवरी के बाद फिर ऑप्शंस का साइकिल नहीं रखते. तो it's okay, don't worry about it. Like what you said, sunk cost, right? Whatever has happened, right? Now at what time you can take a call that you have to decide, because पूरा दिन आपका अगर क्लास में ही जा रहा है, तो कौन कोचिंग कर रहे हैं, डेली जा रहा है, सभी लोग आप कर रहे हैं, सब कितना टाइम के कर रहे हैं? मॉर्निंग कितना 8 से 10, 8 से 10. फिर 11 से 1. जैसे इतना टाइम था. तो आपका शायद मैक्सिमम 3 मिलेगा. सुबह 5 से 7 अगर कर सकते तो, या 7 से 9 कर सकते तो, और शाम का जो है 6 से 8 या फिर 10 से 12, है ना. ये आप 3 स्लॉट कर सकते. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तो मेक द शेड्यूल अकॉर्डिंगली. ठीक है, बट खुद से पढ़ना जरूरी है. क्लास में सुनना अच्छी, मतलब इट्स गुड, somebody is telling all this, बट खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी, यू गिव योर टाइम, यू अपना क्वेश्चंस एनालाइज करे खुद से. रिट्रीवल के लिए ना, जो रिट्रीवल जो बात है ना, कि वो उसके लिए आपको खुद एक बार स्टडी करके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखना जो है, वो रिट्रीवल के लिए बहुत जरूरी है. वो रिट्रीवल का तो आदत डालना पड़ेगा.
जो पढ़ा है उसको वापस कैसे आए, ठीक है. So that is what I have to say. Don't worry, UPSC otherwise is मतलब I have not seen people generally जिन्होंने किया है, most of them are either into civil service or they all reach somewhere. अच्छा जगह पे तो पहुंचा ही है सबने, तो वैसे कुछ वो नहीं करने. बट इस बार प्लीज जितने भी लोग 24 का एग्जाम दे रहे हैं, you will clear your preliminary. Yes. Yes, Yes, sir. 100%. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay, so if you have any questions or any doubt, maybe I can share the number there, तो उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है. With respect to mains, we can discuss. With respect to CSAT, I'll try to see how can I help, ठीक है. Like I think 2-3 लोगों को तो CSAT का प्रॉब्लम है, तो अगर कुछ मेरे सोर्सेस या फिर सोचने का तरीका या कुछ अगर मैं सोच सकता हूँ कि क्या है, व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट, आई ट्राई टू उसमें कुछ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ. ओके. Sir, yeah, online, sir. Sir, which newspaper you read? Oh, good question. So I read 2 newspapers, Hindu and Indian Express. Okay. And sir, while you were working, how you prepared for prelims? Even though you didn't clear, but how you managed to prepare? Yeah, I did clear prelims actually. That's fine. So while I was working, the thing was that morning, definitely, because I was working in a semiconductor firm, Motorola करके, and they were very time demanding in terms of कि ऐसा नहीं है अब रात को कभी आ सकता था, ऐसे था. But still morning में तो एक सेशन हो ही जाता था पढ़ने का, और काम के टाइम पे तो मुश्किल होता था. पर उस टाइम में क्या करता था, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन जो नेट में अवेलेबल होता है, तो whenever you get free time, 5 minutes also, you'll keep doing it so that your mind is kind of continuously going through these topics. तो कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो you are going back to those topics and trying to answer those questions. सही है कि गलत है, और आंसर की देखते हैं, फिर उसके ज्यादा सोचते नहीं है, वो वैसे करके रखते थे. Then again in the evening, once you come back, then you do. But most of the time, the studies at that point of time used to be on Saturdays and Sundays. है ना? तो I think that pre was like वो पहले बार जो पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो गया था while working only. मेंस का जो है नंबर कम आया था, so that is why I think I resigned and then gave again. But you can read, but reading newspaper has to be made a habit. See, for me, there are few things that work for me. One was that I used to read newspaper even before UPSC. So reading newspaper जो है ना, वो UPSC के लिए नहीं था. Reading newspaper जो है बचपन से एक आदत कि जो न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है. और वो उसका क्या है, आपको जो नॉलेज पेरिफेरल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उससे. तो कोई भी चीज नया नहीं लगता आपको, कि हर चीज आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है, एवरीथिंग इज फेमिलियर. तो वो फेमिलियरिटी के लिए न्यूज़पेपर जितना जल्दी पढ़ने आ सकता है, वो चाहे 25 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, 26 के लिए करने वाले हो, या अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, उनके भी कर लीजिए, ठीक है. तो जिनके भी करवाना है वो उनका न्यूज़पेपर पढ़ने का जो आदत डालना बहुत जरूरी है. दैट आई वुड डेफिनेटली suggest. So that was one good thing that worked in my favor. And also considering I'm from that engineering background, CSAT is the other part which did not trouble me much. Like you had to just see whether you'll clear or not. है ना, mock में दे दिया, चल रहा है कि नहीं चल रहा. This is not to brag or anything. I'm just being honest because मेरा जो strategy है वो applicable होना चाहिए ना किसी दूसरे के लिए. तो वो एक था. But that was it. Morning before you going to the office, coming back, one session that in the thing, and then Saturdays and Sundays, and you will maximize when you get less time, you actually maximize, and then you continuously, whenever you get time, you are just going back. History पढ़ा है, but then you are taking questions on 10 questions and trying to see whether you know the questions or not. है ना, वो बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको रैंडमली वो 10-15 क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा. So you create 15 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा, आप दे दो, उसमें नंबर दे देगा. तो जब भी आपको टाइम मिलता है, मान लीजिए अब यहाँ से जा रहे हो, कहीं बैठे हो 15 मिनट के लिए मेट्रो में बैठे, तो आई स्टडी लॉट ऑन मेट्रो एक्चुअली. उस टाइम जो दिल्ली मेट्रो था, उस टाइम पढ़ता रहता था. सो आई थिंक दैट वाज द वे इट वाज ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी. आई यूज्ड टू रीड ओनली वन न्यूज़पेपर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द फर्स्ट टाइम. जब सेकंड टाइम जो मेंस देने के बाद जो इसका रिजल्ट, ऐसे का रिजल्ट आया, तब समझ में आया कि मतलब एक ही टाइप का एनालिसिस काफी नहीं है. तो देन आई मूव टू आल्सो इंडियन एक्सप्रेस. तो तब से जो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ना शुरू किया था. उससे पहले का जो प्रिलिमिनरी में सिर्फ हिंदू ही पढ़ा था. आई होप आई हैव आंसर्ड. Yes, sir.
Okay. And sir, that family distraction point with it means you cannot, you have to be selfish, but you are also not able to become a selfish person. In marriage also you are able to do. I am right now single, but I am unable to distract from the family responsibilities and all. So how you make yourself so determined that you say no to them and yes to studies? See, first of all, it is about clarity in communication, है ना? So it should not be just you are pursuing something, especially if you're staying with the family. And UPSC takes, there are people who do it in hundreds of adversities, बहुत ज्यादा मुश्किलों में भी, but सारे facilities होने के बावजूद भी पढ़ना भी UPSC को पढ़ना एक adversity in itself है, मतलब I would say, है ना? तो वहां पे आपको जो बाकी का जो एडवर्सिटीज है वो मिनिमाइज करने के लिए मैंने जैसे मेरा क्लियर था कि आई सेड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ये 1 साल मुझे दे दो, 1 साल में मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ये मेरे से एक्सपेक्टेशन रखना। कभी कभी मतलब मैं पूरा टाइम ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें तो बोला था पढ़ना था, मैंने बोला था सब्जी लेने के लिए, तब तो तुमको टाइम नहीं था, अब देखो बैठ के तुम सीरियल देख रहे हो, ठीक है? तो अब ये भी हो सकता है ना? ये बहुत नेचुरल है। हाँ. For the other person, it is actually completely unacceptable because something which is very much required in the home, you denied, and then you are doing some, और पढ़ने के लिए बोल के तुमने वो मना किया, और उसके बाद तुम कुछ और कर रहे हो, ठीक है? वो जो है, it was tough actually. It takes, especially parents, it's even then you tell that नहीं, मुझे आधे घंटे का वो जो भी ब्रेक भी लेना है, वो ब्रेक you have to be honest to yourself only, nobody else, but अगर आधे घंटे का ब्रेक भी लेना है, वो ब्रेक लेना जरूरी था, इसलिए किया है मैंने, है ना? वो आधे घंटे का ब्रेक, and you have to give a timeline. Most definitely need a timeline. So I remember, because I was married, I was working, and my parents are also dependent, I took their permission kind of that I'm going to leave my job, earning is not going to be there, and I'm going to give me myself 1 year. 1 साल में देने वाला हूँ खुद को, और ये मेरा बहुत ये constraints रहने वाला है इस टाइम में ना. So it was not just about time distraction. There are a lot of other things which comes with that when you are in a part of family and taking care of the family also. So that is additional pressure. All those things are there. But then you can be clear. आप अपनी बात रख सकते हैं कि ये है, ये अगला जो है ना 6 महीने, अगला 4 महीने जो है ये होने वाला है. And then you share your happiness with them also. Whenever there are, share your story with them. If you're clearing a mock or you get good marks in mock, spend that half an hour जब भी आपको टाइम मिलता है, लंच के टाइम पे या फिर जो भी है, share your story so that they are also part of the journey, है ना? वो आपका जो सक्सेस है, आपका जो फेलियर है, so that they become part of it. अभी क्या है, हम उनको साइड करके रखते हैं और मैं जो भी है, I just go through whatever I feel like. Then it becomes, it becomes your own journey and they become a distraction. No, they're not a distraction. They're actually a strength. The family is it's actually a strength, provided they are part of a journey. If for that, slightly you need to understand your communication in a way that they feel themselves part of the journey. If they don't feel part of a journey, then it becomes like a distraction or constraint. If they are part of your journey, they are your biggest strength, है ना? तो जब चाय चाहिए, चाय मिल जाता है, नींबू पानी चाहिए, नींबू पानी मिल जाता है, but it becomes completely different in that way. I hope I have answered. Yes, sir. Thank you, sir. You can't answer, but yeah, you have to have that conversation if you're going to give, and whenever you get time, if you are wanting to be honest in wanting to spend the time with them, है ना? half an hour जब भी मिलता है, और वो अपना जो success failure जो है ना, हल्का हल्का सा ही सही, but let it be their journey also, the success journey. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you. Sure. Okay. कुछ और? Hello, sir. Can I ask a doubt? Yeah, sure, please. सर, जो राइटिंग प्रैक्टिस है, मतलब हम हमारे जो स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं स्टडी की, तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस हमें इंक्लूड करनी चाहिए क्या, या फिर मैक्सिमम सिलेबस होने के बाद इंक्लूड करनी चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस? I would say preliminary you have to clear, as I was telling. आपने प्री दिया है पहले? नो सर, जस्ट बिगिनिंग है. अच्छा, बिगिनिंग है तो आप प्री इस साल दे रहे हो आप एग्जाम? नो सर, मेरा अटेम्प्ट 2025 को है. 25 को है, तो आई वुड सजेस्ट अभी जो है ना नॉलेज
अंडरस्टैंडिंग वो फेज है, एक्सप्रेशन वाला फेज आएगा और रिट्रीवल और एक्सप्रेशन वाला फेज, पर उससे पहले जो है ना आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। आपके लिए एक्सप्रेशन मतलब राइटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा कोई एक टॉपिक पे, मान लीजिए G20 है ना, G20 पे अगर क्या आप अपने आप को 2 मिनट बता सकते हो कि क्या हुआ और क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, या फिर BRI है, BRI है क्या, ये आपने, राइटिंग कम्स मच लेटर, राइट? एक्सप्रेसिंग, इवन फॉर्मिंग अ थॉट ऑन इट। आप तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, आई विल जस्ट टेल वन मोर थिंग। सो whenever I used to read newspaper, it is not just about reading, right? तो मान लो एक आर्टिकल पढ़ लिया, then you would analyze it, right? मेरा क्या इनपुट है इसमें, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें, वो एक जो 5 मिनट आप देते हैं वो that becomes that really helps. What is your 5 minute or 2 minute or 1 minute on to that one newspaper, right? वो अगर आप दे सकते हो अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, समझते हुए, then I think that will be of great help right now, rather than straight away getting into writing exam oriented pattern, because you have time. And by the time you start preparing for the next preliminary, you would be a well-known personality with understanding of almost all the worldly affairs कि चल क्या रहा है, चलता क्या दुनिया में, and you are also a person with whom anybody can have a conversation on any topic, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, चाहे writing comes much later in terms of expression. First is formation of thought, then you are able to express it by verbal, then comes how you are able to write it, right? So the thought part or analyzing the topic or the news item or whatever is a fact which is there, analyzing it and forming a thought on it, I would suggest that would be the first thing to begin with. Yes, thank you, sir. Thank you. 2025 में अटेम्प्ट है तो मैक्सिमम कितने घंटे देने चाहिए पढ़ाई को? क्योंकि सर कॉलेज स्टडीज और कॉम्पिटिटिव स्टडीज मतलब मैनेज नहीं हो रहा है अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्या? सर। SYBA में हूँ, सेकेंड ईयर ऑफ BA। सेकेंड ईयर ऑफ BA, तो पर सुबह शाम तो दे सकते हो ना, 2 घंटे तो। यस सर। हाँ, तो इवन अगर टॉपिक आप कवर करोगे तो आपके लिए तो ये 100 दिन का तो लिमिटेशन तो है नहीं। यस सर, राइट। तो आप वो तो कर सकते हैं कि मान लीजिए 2 घंटे से या फिर 3 टॉपिक, आपका ऑप्शंस कौन सा रहने वाला है? सर हिस्ट्री तो ओवरलैप भी हो रहा है, मतलब एसेंशियली आप BA भी हिस्ट्री में कर रहे हो क्या? यस सर, आई एम थिंकिंग दैट हिस्ट्री में करूँ। अच्छा, so you have time, then you can take that at least morning and evening. Keep a habit of 2 things. One is study in the morning, study in the evening, and read the newspaper. And if you keep that in that initial 2-3 months time, you will be able to assess how much more time you need to give, and also keep those previous year questions and trying to see whether the sources, the rest of the things are all applicable, the same only, whether the sources are same, जो है वो सही है कि नहीं. Only thing is that you might not need to give that 12 hours of study in a day for like unlike the other people who are giving it this year. यस सर, राइट सर। यस सर। और सर साइंस और टेक्नोलॉजी जो ये सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई कैसे करें, मतलब NCERT फर्स्ट रेफर करें? NCERT तो है ही, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर में भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है, और जो मेरे ख्याल से किताब भी है, बट डोंट नो, हाँ, there is like Kalpana Rajaram, ऐसे there are some books also on science and technology in India which you'll find on the internet, but I think to begin with, since you're beginning to study right now, NCERT and then following on the science and technology topics of newspapers, right? That should be of there are other things also like Science Reporter aata hai, there are magazines which come, so you can follow these things which will, because over a period of 1 year ये करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते ही आपका जो है ना बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन बिल्ड हो जाएगा. You don't need to actually study separately, and then you of course you follow NCERT. यस सर, श्योर सर। और सर सीसेट मतलब स्टार्ट करना है तो RS अग्रवाल मतलब अच्छी बुक है ना, मतलब उससे ही स्टार्ट करूँ ना? McGraw-Hill is a good book, yeah. McGraw-Hill is, I think वो वही है ना? सही है ना? हाँ, I don't remember it by the author name. हाँ, that's a good book, yeah. यस सर। सर मतलब मेरा अगर मैथ्स वीक है तो फिर कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा फोकस करूं, ऐसे हो सकता है? अभी आपके पास टाइम है, अभी आप शॉर्टकट्स लेने की जरूरत नहीं है for you, right? अगर आप इस साल दे रहे होते तो then we'll have been analyzing what is your strong suit, and you actually have time. So why do you say that one is your strength and one is your weakness?
you have time. So what I would suggest is, if you find something is to be a weak side, which is your basic numeracy or data interpretation or logic reasoning, उस पे थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि अभी वक्त है आपके पास, है ना? Yes, right. है ना? 6 महीने आप उसमें वक्त दे दो, then you analyze वो strong है कि weak है. तैयारी करने से शुरू, मतलब पहले से weak और strong हो नहीं सकता. कि you have to put that time and then you see that okay, this is my weak point and that is my strong point. Yes, sir, right, sir. Absolutely right. Okay, all the best. Thank you very much, sir. Okay, I guess मैंने अभी पूरा यही बताया, जैसे वही तो पूरा बताया अभी सुबह से शाम तक का. हाँ, वही 5 बजे, 5 से 6 बजे टाइप उठता था, 5 या 6 बजे 2 घंटे शुरू करता था, जो भी टॉपिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी है. उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के साथ आप न्यूज़पेपर शुरू करते थे. 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कितना है उसमें. कभी तो 1 घंटे में हो जाता था, कभी 1.5 घंटे में हो जाता था, 2 घंटे में हो जाता था. थोड़ा सा मैं कट वगैरह करके रखता था न्यूज़पेपर्स. और वो भी था कि जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एनालाइज करते थे उसको भी डाउनलोड करके रखता था, काइंड ऑफ लाइक एक पीडीएफ टाइप बना के. तो उस टाइम मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन टाइप नहीं था. अभी वो सब है, वीकली, मंथली, ईयरली सब कंपाइल करके देते हैं ये जो डिफरेंट प्रिपरेशन सेंटर्स है. उसके बाद उसमें से कई तो बहुत सारे एनालाइज करके देते हैं. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू न्यूज़पेपर थोड़ा सा तो ध्यान दो, पर ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है? नेवर पुट मोर देन 1.5 या 2 घंटे से ऊपर न्यूज़पेपर, है ना? से ज्यादा मत दीजिएगा. उसके बाद अगला जो सेशन है आपका 2 घंटे का, अगेन जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किया, तो मैंने एक टॉपिक 15 दिन ऐसा नहीं किया था, 2 या 3 टॉपिक लेता था और उसका बनाता था, जस्ट सो दैट मेरा थोड़ा वो रहे, इंटरेस्ट रहे. और ऐसे भी लगे कि अच्छा मन नहीं कर रहा है तो कुछ और उठा के पढ़ने का भी ऑप्शन है. आपने हार्ड एंड फास्ट एक सिलेबस बना, हिस्ट्री पढ़ूंगा लगता है, इट बिकम्स टू मच प्रेशर ऑन यू कि आप हिस्ट्री पढ़ते रहो टाइप ना. तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो वैसे एक और. देन लंच हो गया, लंच के बाद मान लो 1-2 घंटे ब्रेक ले लिया. तभी क्या होता था कि कुछ सवाल पूछते थे या फिर कुछ टेस्ट ऐसे लेते थे, थोड़ा विदाउट इवन अप्लाइंग योर माइंड, जस्ट टू रिफ्रेश थिंग्स. देन 3 to 5 आपका टाइम मिल जाता था. जब मैं बोल रहा हूँ कि जब रिजाइन करके प्रॉपर जब वो करता. और उसके बाद शाम चाय का टाइम हो जाता था. चाय उस टाइम थोड़ा घूम लिया, आधा 1 घंटा 1-1.5 घंटा. उसके बाद फिर अगेन 6 से 8 बैठ जाएंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर 2 घंटे और बैठ जाएंगे. 2 घंटे का टाइम लेके करता था. ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता था. देखो प्री जो है दोनों तरीके से हुआ है. और जब एक्चुअली डिफरेंस ये है कि जब दूसरी बार जो प्री दे रहा था तब प्री के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था तब, क्योंकि पहले मैं प्री एक बार दे चुका था ना. मेरे लिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरा दिक्कत कहाँ पे, मेंस में कहीं कहीं पे इस एरिया में मेरे को ऑलरेडी पता था वो. तो एक मैंने उसके लिए भी टाइम रखता था उसमें, से सोशियोलॉजी या फिर बैड जो भी टॉपिक है उस टाइम 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, तो उसके लिए भी टाइम रखना पड़ता था. ठीक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट मेरा जो स्टाइल होता. मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम, उसमें थोड़ा क्वेश्चन पेपर देख लिया, पढ़ लिया, थोड़ा सपना देख लिया, सब कुछ हो जाता था उसमें, और ऐसे करके. पर हाँ जरूरी है, पास ने कहा ना कि सपनों का मर जाना, सपनों से ज्यादा ना क्यूरियोसिटी का मर जाना जो है ना वो खतरनाक है. जानने का जो इच्छा है तो उसको खत्म नहीं करने का. ठीक है, जानते रहिए, सीखते रहिए. मॉक टेस्ट 2 ही दिया था. हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा मैं इससे मॉक टेस्ट वगैरह का, क्योंकि मैं काम करता था उस टाइम. प्री एक बार हो गया था पहले ही, तो प्री का वैल्यू खत्म हो गया था. आप नौकरी कर रहे हो, टाइम नहीं था आपका, प्री हो गया तो आपको वैसे ही हो गया, है ना? तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस, पर वो नहीं सजेस्ट करूंगा. आई वुड आस्क यू दैट यू गिव योर मॉक. ठीक है, आप हफ्ते में अगर एक बार मॉक दे सकते हो, 2 हफ्ते में एक बार मॉक दे सकते हो, आपको देना जरूरी है, अब उसको दे दीजिए. डजंट मैटर आपका नंबर कितना आता है नहीं आता है, क्योंकि इनिशियली तो चैप्टर कुछ और होगा, पूरा आता है, आपने पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, बट लास्ट की जो मंथ की जो है ना, जब पूरा आता है, देन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू इट. ठीक है, आपने कहा था परिवर्तन करते थे, लेकिन आप मतलब रिवीजन कैसे करते थे कि हाँ तो मैं अंडरलाइन न्यूज़पेपर कट करते थे ना, कट करके किताब में रखता था. जैसे हिस्ट्री का मुझे लगा तो हिस्ट्री वाला एक नोटबुक था. वो सर जो करंट का आता है बुक में, हाँ तो बुक में एक्चुअली बुक में रखता था और अंडरलाइन करते थे, तो साइड में कभी कभी मन करे तो लिख देता था कि हल्का सा. ठीक है, और उसके बाद जो वो अंडरलाइन जो पार्ट है उसी को एक बार देख लेता था कि कहाँ कहाँ पे है, उसको देखना. उसके बाद पीवाईक्यू में जाता. क्योंकि नोट लिखने का जनरली टाइम मिलता नहीं है, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, स्पेशली राइटिंग नोट्स फॉर मी इज लिटिल डिफिकल्ट.
तो वो बहुत टाइम जाता था, इसलिए मैंने कहा कई लोग नोट लिखते हैं, पर प्रीलिम्स के लिए नोट लिखना ना कोई एंडलेस है। उसके लिए नोट लिखना, ऑप्शंस के लिए आप कर सकते हैं काम, क्योंकि एक सिलेक्ट टॉपिक है जिसमें आप कर सकते हो, बट जनरल स्टडीज के लिए नोट्स लिखना इस बहुत ही वास्ट है। क्या नोट्स लिखोगे आप, क्या नहीं करोगे। और जनरली तो मैक्सिमम कंडेंस फॉर्म में तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाता है। मैं अंडरलाइन और उसमें चीजें क्यों लिखता था, मुझे लगता था कि दिस इज इंटरेस्टिंग, ऐसे सवाल आ सकता है, ये सवाल कैसे आ सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी मुद्दे पे, कोई भी चीज पे ना, कि वही मैं बोल रहा था कि आईसीसी, मान लो इसराइल, साउथ अफ्रीका ने इसराइल को आईसीसी पे लेके गया, ठीक है, अब ये न्यूज है, अब ये मान लो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते वक्त कि इसका सवाल क्या क्या हो सकता है। आईसीसी हो सकता है, यूएनएचआरसी हो सकता है, रोम स्टैच्यू हो सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है, ठीक है, ये मेंबर्स का उसका हो सकता है। तो सडनली इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईसीसी, यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड पेरिफेरी, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अलोंग इन दैट वे, उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जैसे इंडिया एक्सप्लेन, लाइक आई एक्सप्लेन करके इंडियन एक्सप्रेस का एक आता है, आई डोंट नो आप फॉलो करते हैं कि नहीं, हाँ तो करते, तो उसमें इस तरीके से वो सोचते हैं, कहीं चाहे हिंदू का भी कहीं कहीं कॉलम्स है जो कि इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको सोचते हैं कि व्हाट इज आईसीसी, उसका क्या हुआ, उसका क्या है कंपैरिजन, वो भी खत्म नहीं होगा वहां से भी। इसलिए मैं बोला कि कोई भी चीज पढ़ते हुए 2 minutes यू गिव योरसेल्फ, यू गिव 2 minutes योरसेल्फ टू व्हाट इज योर थॉट ऑन इट, चाहे वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, चाहे हिस्ट्री का हो सकता है, चाहे किसी भी चीज का हो सकता है, 2 मिनट आप उसको अंडरलाइन करते हुए आप दे सकते हो। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि सोचने का जो स्टाइल है ना, इसलिए क्वेश्चन पेपर पहले देखना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप जब एक फैक्ट देखोगे, सडनली आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन बनाने वाला बंदा होता तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाते, तो इस तरीके से सोचते हैं। कभी टाइम मिलेगा, वैसे अभी तो लेट है, जो 24-25 नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं ना, जैसे 25 वगैरह देने वाले हैं, आप कभी इसी टॉपिक करते हो ना, चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो, है ना, तो उसमें टॉपिक में ना सवाल पूछना, उसको बताना कि इससे सवाल बनाओ। बाकी लोग मत यूज करना, अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उनको बस इतना टाइम नहीं, उसमें खो जाओगे, ठीक है। बट जिनके पास टाइम है, वो मान लीजिए कोई भी एक मुद्दा है, कोई भी आप पढ़ रहे हो कि विंध्या, ठीक है, उस पर सवाल उठ रहा है, तो ज्योग्राफी का, तो क्या यूपीएससी में सवाल कैसे आता है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली 2 आर करेक्ट और 1 आर करेक्ट, है ना। तो यू कैन ask it to make a question on Vindhya and the other Himalayan, other mountain ranges in India, where the options are like only 1 is correct, only 2 are correct, only 3 are correct. अब उसको ये बताओगे ना, और चाहे वो आप यू कैन यूज अपने, यू कैन यूज, ऑफ कोर्स इसमें फैक्चुअलिटी थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ा कहीं कहीं गलत भी बताता है आंसर्स, बट इट विल मेक गुड क्वेश्चंस ऑल्सो। तो यू कैन यूज बार्ड, ठीक है, गूगल का है, दैट इज लिटिल मोर एक्यूरेट, और यू कैन यूज बिंग का जो चैट है, दैट यू कैन यूज, राइट। तो और क्लाउड करके है, क्लाउड इज रियली गुड। क्लाउड का एक ही डिफिकल्टी है कि फ्री है, बट उसमें आपको एक यूएस नंबर चाहिए उसका एक्टिवेट करने के लिए, बट अदरवाइज रियली गुड। सो दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, इवन फॉर अ टॉपिक, राइट, एंड यू डोंट नीड टू वेस्ट सो मच टाइम। तो वो आपको उसको बोल दो कि बना दे, बाद में जब भी टाइम मिलता है ना, तो इसमें 1 क्वेश्चन, एक बार आपने उसको बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनाना है, उसका टॉपिक देते रहो, वो क्वेश्चन बनाते रहेगा। So you'll start thinking in those lines, कि how the same question could be made into. I'll just ask. I think maybe I was trying to show something. So it's like it's ICC, right? I was not making any question on ICC पे पूछ रहा था कि ऐसे सवाल कैसे आ सकते हैं। Suddenly I just asked them, "Wow, can you make?" So ICC is a global court set up by UN to prosecute individuals for the most serious crimes of international concern. Statement 1. Statement 2. Only countries that are members of Rome Statute, the ICC's founding treaty, can be investigated by the court. Number 3. ICC can prosecute individuals for genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Number 4. ICC uses its own police force to arrest suspects and enforce its rulings. Now 4 statements. Of course. How many of the four statements are correct? Only 1, only 2, only 3, or right? Or not, whichever. Right. Now this is a question that looks like a UPSC question, right? It is from a topic that you know, right? But it is difficult for individual to make this always this question, because both are Jesus को link करना पड़ेगा. But it's kind of they actually help,
you to make these questions, right? And then this also helps you to how to go about an elimination process, right? Maybe one thing that you know which is not correct here. What is it? Last one, right? You certainly know that that is not correct, right? Then so all four is, you know that it is also not, no, or none is also. So suddenly you're left with only two are correct, only three are correct, or you're only left with two. And then you see what else is incorrect in this. Can it investigate known ICC members? It can. Russia, Putin, right? So this is like just on the news only, right? Your other answer is also from news. दूसरा भी news से ही आ गया आपको, क्योंकि they are not a member of, है ना? पर उनके खिलाफ तो कर दिया, साइन करके ये दोनों लास्ट ईयर की न्यूज से ही है, ठीक है? तो ये इस तरीके का जो सवाल है वो कैसे बन सकता है? I will not ask you to do this right now, जिनको अभी देना है वो आपको मॉक में जो भी दे रहे हैं वो ये सब ऐसे ही बना के आपको दे देंगे, तो मॉक देना आपके लिए काफी है। पर जिनके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब वो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, ये थोड़ा सा आपको जिंदगी इंटरेस्टिंग भी बना देगा। It will make your life a little more interesting also. Otherwise, it's just acquiring knowledge. But this is application of that also, right? So it keeps that each session complete. So you start with what needs to be studied, looking on your study, then you either you go for PYQ or you try to do questions like this, and then you complete that process. So each 2 hour session is kind of a आपने पूरा process उसको कर लिया. So that is it. Any other question? Otherwise, it's 1 o'clock. आप लोगों का भी time waste नहीं करना चाहिए. मेरा तो secondary है ना? So ready? Yes sir. हाँ. मेरा? Resign? अरे वो तो 2 घंटे का लेक्चर है, वो उसके लिए काफी नहीं है, वो बहुत लंबा लेक्चर है ना, that's a long thing. अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी ऐसे ही है, तो जो अभी भी आप लोगों का मौका है जूनियर बन के आने का है ना, आप आ जाओ फिर मैं वापस ले लेता हूँ बट आओ तो सही है ना, and come with good intention to study. This is only means, the end is service, right? All the very best. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir?